Hello, guys. Welcome to United Bedtime Talks. I hope you are doing well. Today, we are joined by Pratyush from Delhi, Mudit from Mumbai, and Sadiq Bhai from Dubai. And I'm sitting in Gujarat. Not that it's relevant. It's that's why the social media is such a great platform. You can be anywhere. You can talk to anyone. You can interact with a lot of different people. But in this age, or when you are young, when you are in the gone decades also, we have seen that some things which aren't right, they persist. जैसे कुछ दिनों पहले चैट आया था कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं तो मुझे बुली किया जाता है मेरी स्कूल में. बुलिंग इज नॉट समथिंग विच शुड बी टॉलरेटेड. ठीक है, आपको एक टाइम पे स्टैंड लेना पड़ता है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टॉप बुलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर. ठीक है, हर बार आपका टॉलरेंस आपको अच्छी जगह नहीं लेके जाएगा. इट जस्ट अलाउज द पीपल हु बुली यू टू कीप ऑन बुलिंग. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन टॉक टू समवन. You can talk to someone, a guardian, a teacher, or anyone who is senior to you. आप अपने बड़े भाई बहन से भी बात कर सकते हो if you are comfortable. So talk to them. Apart from that, if you are at a stage where you can uh, influence the people who are bullying, then you should take action. अगर आप कुछ नहीं करोगे as an elder or as someone is in a position to do something about it, that falls on you. Because अब सोचिए, very close friend of mine was abused. ठीक है, was a part of on the receiving end of a lot of things. He told me that it's very common in my life that I'm bullied. That's why I don't want to answer to these people, or doesn't want to stand up. अब जब इतनी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, it doesn't mean that person is not complaining. It means that the person is so suppressed कि आपने खत्म कर दिया यार एज अ सोसाइटी उसको. That falls on the society. If you people see around you that anyone is being abused, anyone is being bullied, take a stand. Take a stand. कल आफ्टर पीएसजी गेम कुछ चीजें होती है, बेंटर होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, अंडरस्टैंड. ठीक है, बट काफी अलग अलग टाइप के बुलीज भी होते हैं. दे विल डबल डाउन. दे वुड प्ले विक्टिम. अलग अलग स्पीशीज होती है भाई. आई हेट ब्रिंगिंग दिस एग्जाम्पल. ठीक है, आई रियली हेट टॉकिंग अबाउट दिस, बट मेसन ग्रीनवुड was living amongst that United players, that staff, that youngsters. He came from our academy. अगर उनके गर्लफ्रेंड फर्स्ट फ्यू मंथ्स कंप्लेन नहीं करते, that doesn't mean that she is fine with it or that should be allowed. वो गलत है. Just because that person doesn't complain about it, उसको आप सही नहीं बता सकते हो. गलत जो है वो है. So people could be around you. Be careful. Be humble. We'll talk about football a lot. Don't worry. But this is something I wanted to point it out because I think we are really growing a lot as a channel. It's our responsibility that we should put in right things in front of right people. And if we can influence, I don't know, if we can influence one person, have a little bit of a better life in terms of कि एक बार कम वो bully हो जाए, my everything is successful. इससे ज़्यादा if you guys want to talk about anything, do let us know. We'll try to help you in any way we can. But guys, always take a stand. हमेशा see, sometimes walking away is the smart thing to do. If you are the one getting bullied in the place, sometimes walking away is the best thing to do. Do that as well. Situation को थोड़ा भापो and act. If you will not act, people will keep on doing things they do.
the way they want to do, और ज्यादा हिम्मत बढ़ती जाएगी. ठीक है. So take a stand. Always take a stand. Anyway, let's talk about few of the amazing things that are happening today. आज का football world, my God, it is exploded. It has exploded. Chelsea news, Madrid beating PSG. वैसे Pochettino and PSG are match made in heaven. अरे भाई हम भी इंटरेक्ट कर सकते हैं 2-4 मिनट. मेरा बहुत मन है ब्रो. भाई हम Why कौन से not? बड़े, प्लीज गेट इन टच विद अस. सोशल हैंडल्स वीडियो में नीचे रहेगा, एक मैसेज ड्रॉप कर दो. वी लव यू यार. अरे 2-4 मिनट क्या यार, आप हम आपको पूरा 1 घंटा दे देंगे. हेलो अबीर, हेलो रिवाज, हेलो उत्तम. As a Chelsea fan, it is decided my future is unstable. Yes, Uttam. We're gonna talk about Chelsea a lot today as well, just not Manchester United. Uh, I think it's a very very sad situation. Very very sad situation if you are an athlete, if you are a football player, if you are a football follower. ठीक है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज एथलीट्स को हार्म करते हैं, बिजनेसेस को हैम्पर करते हैं, लाइफ लाइफ ऊपर नीचे कर देते हैं. ठीक है. और एंड देयर इज नो फॉल्ट ऑफ दिस. ओके, दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर दिस, बट देयर इज नो फॉल्ट ऑफ दिस. वो एथलीट की क्या गलती. वो तो एन अब्रामोविच वाज रनिंग चेल्सी. आई थिंक लास्ट 20 इयर्स में along with City they are the most successful club. नाक में दम कर दिया है भाई यूनाइटेड की. यूनाइटेड वाज द पिनकल. नाक में दम कर दिया था वो टाइम पे भी. A lot of respect for Chelsea in terms of what they've done over the last 20 years. I think if this mess isn't sorted out, especially जो अभी conversations चल रहे हैं, जो मई में शायद sanctions लग सकते हैं, that they might be dropping 9 points because of this. All United fans love Wayne Rooney. We love him. और डर्बी में हम देख रहे हैं क्या सिचुएशन है. We don't like it. We love the fight back. But this is horrendous situation to be in. So we're gonna talk about Chelsea, what it means for Thomas. Could the train will be in United's Manchester, or we'll talk about transfers, how it will affect the whole Premier League, Chelsea Football Club, Manchester United even, and we're gonna talk about yesterday's match. Plus, we're gonna talk about the news in the world of Manchester United. Pratyush, let's go. लेट्स स्टार्ट विथ यस्टरडेज मैच, क्योंकि बहुत गर्मा गर्म टॉपिक है. तो एट विथ 30 मिनट्स टू गो इन द मैच, PSG वे लीडिंग 2-0 एंड दे लॉस्ट द मैच 3-2. आज देखो, हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि पॉच है या ये है या वो है. आज हम पॉच के बारे में नहीं बात करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजर फर्स्ट. आएंगे इवेंचुअली, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PSG, क्योंकि ये पॉच इज नॉट द ओनली मैनेजर टू हैव डन दैट, बॉटल्ड इट विथ PSG. इसके पहले टॉमस टुचल ने किया था, उसके पहले तुमको उनाई एमरी ने कर रखा है. सो इट्स अ रेगुलर ट्रेंड फॉर देम, और दिस इज जस्ट अनदर नेम. और पिछले 5 साल में अगर उठा के देखें तो हर बड़े क्लब के अगेंस्ट ही हार चुके हैं. फर्स्ट लेग में जीत के या उसके बाद. सादिक भाई, व्हाट्स द डिफरेंस जो जीतते हैं और ये जो हर बार बॉटल करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है बार बार? देखो, पॉइंट ये है कि कल के मैच के बाद आज सुबह जो एक वो निकला नासिर अल खलीफी का जो उसने किया हरकत, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि प्लेयर्स क्यों बॉटल करते हैं. इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इतना प्रेशर है कि आप अपने बचपन में हम चले जाए ना, व्हेन पेरेंट्स आर रियली स्ट्रिक्ट ऑन यू कि भाई आपने स्कोर करना है, आपने स्कूल में मार्क्स लाने, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. छोटा क्लास टेस्ट में भी आपके पीछे पड़ जाए, आपको उस पर मार पड़े तो फिर क्या होता है? I agree सादिक भाई. I think that club आपसे एक गलती होती है ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था उस मैच में. डोनारुमा मेड अ मिस्टेक, बेंजेमा स्कोर्ड अ गोल, किक ऑफ पे दे प्रेस्ड अगेन, बट हुआ क्या? वो मेंटल स्कार्स और इन सब प्लेयर्स के हैं. हम कहते हैं ओके, आई एम आल्सो अ बार्सा सपोर्टर, तो अगर आप कहो कि मेसी एंड नेमार हैड डन दैट टू PSG आल्सो देमसेल्व्स, जब वो when they did the remontada,
ठीक है ना? तो but the same had happened to Neymar and the same had also happened to Messi by Liverpool, that corner taken quickly. तो उन दोनों के भी कुछ मेंटल स्कार्स थे, प्लस बाकी जितनी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पीएसजी टीम है, दे हैव ऑल गॉन थ्रू दोज इंसिडेंट्स. और उन सब इंसिडेंट्स के बाद बैकरूम में और उसमें उनके साथ क्या हुआ था, कितना उनको अब्यूज मिला था, कितनी उनको गाली पड़ी थी बोर्ड की तरफ से, वी डोंट नो. बट कल नासिर अल खलीफी को देख के समझ में आ गया कि उनके साथ क्या हुआ होगा. तो दे वर ऑलरेडी अंडर दैट मच ऑफ प्रेशर कि हमने पहले पिछले 5-6 साल से ये होता आ रहा है, और इस दफा अगेन दे सॉ कि भाई ये हमने क्या कर दिया, वी गेव अप अ गोल, दैट्स इट, द टीम क्रम्बल्ड देयर. हालांकि उसके बाद पॉच ने एक्स्ट्रा डिफेंसिव प्लेयर्स डाले, ही ट्राइड चेंजिंग थिंग्स, ट्राइड एडिंग इन डिफरेंट प्लेयर्स. हालांकि आई डू नॉट अग्री विद हिज सब्स्टिट्यूशन ऑफ लियांड्रो पैराडेस, बिकॉज ही वाज द ओनली वन हु वाज होल्डिंग द मिडफील्ड टुगेदर. Verratti was playing the free role, but he was allowed to play the free role because of Leandro Paredes. That was not Sadiq bhai, yes. कल का मैच was such a classic example कि आपका अच्छा मिडफील्ड आपके लिए क्या कर सकता है. भाई हम तो टॉटनहम हर ने वीक we सॉरी see it टॉटनहम week बोल in रहा week हूँ, out. पीएसजी ने अपना मिडफील्ड वीक किया और मैड्रिड ने उल्टा किया, कमाविंगा को लाके मैड्रिड वो पूरा मिडफील्ड खोल दिया. ठीक है, Actually week जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था कमाविंगा का, मॉडरिच के जो रन्स बढ़ गए, क्रूज का इफेक्टिवनेस बढ़ गया, पूरा खोल के रख दिया. उनका जो प्रेस था वो इफेक्टिव नहीं था. उसने देखो वीक नहीं किया, उसने क्या किया, उसने स्ट्रेंथन, उसने मिडफील्डर्स के लिए मिडफील्डर चेंज किया और उसने राइट विंगर के लिए राइट विंगर चेंज किया, बट उसने करेक्ट प्लेयर फॉर द करेक्ट पोजीशन एंड द करेक्ट टाइमिंग लाया. अगर आप ऑन पेपर देखो तो राइट विंगर गॉट स्विच फॉर राइट विंगर एंड अ सेंट्रल मिडफील्डर गॉट स्विच फॉर अ सेंट्रल मिडफील्डर. Yep. But that dynamism of Kamavinga in the midfield, actually, the introduction of Kamavinga did what? Kamavinga is a pressing midfielder who plays a hybrid 6/8 role. तो वो up and down, box to box वो लगा पड़ा था, which then allowed Fede Valverde to sit back and become a screener and a presser. And at the same time, I think it also gave unlimited freedom for Modric to run the game. वो वैसे ही he was running the game. And the one aspect that we did not pay, I mean, people are talking about it, but not that much, is Rodrigo. Yeah. What Rodrigo did was, Asensio, अगर आप उसका heat map first half का देखो तो essentially he was a central midfielder / center back. उसका movement था और बहुत minimal उसका involvement था. Rodrigo just widened the pitch up. Yeah. एक विंग पे आपके पास एक्सट्रीम विंग को हक करके विनिशियस खेल रहा है और दूसरे विंग पे आपके पास रोड्रिगो खेल रहा है, एंड दे हैव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेस, एंड देन यू ऐड अ पर्सन लाइक कामाविंगा हु इज अ energizer bunny in the middle with a destroyer like Fede Valverde sitting in the middle and Modric in free role to communicate with those wings and Benzema dragging the center backs in and around. आपने उनके जो PSG अगर आप देखो फर्स्ट हाफ में राइट विंग मैड्रिड का पूरा डेड था. Yeah. There was no actions going on over there. Yeah. Everything was being, वो लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे, बट क्या था, PSG could overcompensate on the left, hit one diagonal through ball in the middle to Paredes or to Verratti. Verratti hit one diagonal off to the other wing onto Neymar. Neymar then connected one to Mbappe और वो खुल जाते थे. Yeah. Because they had overloaded one side, defensive transition भी आपके लिए फिर difficult हो जाता है. उन्होंने क्या किया, when you add Rodrigo and you add Vinicius on each of the wings with that much of pace, you balance out the field, which is then very difficult for PSG to defend. Yeah, ये exactly balance is, इसीलिए किसी भी टीम में ना बैलेंस का हमेशा बात किया जाता है, बिकॉज आप वन साइडेड जब हेवी आप कर लेते हो ना, ओवरलोड कर लेते हो वन साइड, तो इट्स इजी टू डिफेंड क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, एंड इट्स इजी टू अटैक क्योंकि आपको पता है कि मेरा सोर्स ऑफ अटैक किधर से निकलेगा इफ वी विन द बॉल इन दैट एरिया. तो वो बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी टीम को ये करने के लिए. सिटी आर सो गुड, या व्हाई लिवरपूल आर सो गुड, क्योंकि उनके दोनों विंग्स के पास ना बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बोथ द विंग्स आर एक्टिव. हमारे साथ फिर वही इशू आता है कि वी आर मोस्टली लेफ्ट विंग हैवी हैं हम, और राइट विंग पे हमारे पास धीरे-धीरे आ रहे ऑप्शंस, बट वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर. आप सब छोड़ दो ना,
हम देख रहे हैं कि एक विंटर ट्रांसफर विंडो ने बारसा को इतना क्यों ट्रांसफॉर्म कर दिया। हाँ Adama करेक्ट। Traore Adama Traore। allows you to stretch that right side, and he keeps it stretched out throughout the game. And then when you bring in a Dembele as a super sub later on, against tired legs, Dembele is completely difficult to play. A player like him who can keep switching wings, who's two-footed to the extreme, तो आपका गेम खुल जाता है। मुजीद भाई योर एक मिनट टेक एक ऑन। मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ प्रत्युष, हाँ बोल आई बोल। वांट टू एड्रेस द लास्ट कमेंट। गौरव अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये इतना डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आई विल ब्रिंग योर कमेंट हियर। इतना डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन दी एंड वी ऑल नो Poch bottled it, PSG bottled it. Yeah, you can say that, but see, वेट शादिक भाई, होना ही था। लेट मी टेल यू, होना ही था। जब वो मोमेंट आया ना, ठीक है, जो जब 2-1 हुआ ना, यार आई थिंक जो भी मैच देख रहा था ना, सबको ये फील आ गया था कि ये गया, हाँ पीएसजी से गया, ठीक है। और वो 2-1 उसका पहले एग्रीगेट पे या 2-1 मैच में? एग्रीगेट 2-1 मैच में कहाँ हुआ है? हुआ था ना जब 2-1 हुआ था हाँ, ना, ओके 2-1। ओके, नहीं नहीं नहीं, एग्रीगेट व्हेन दैट अच्छा फर्स्ट गोल वेंट इन, अच्छा अच्छा। एवरीबॉडी न्यू कि कम से हम्म। कम एक्स्ट्रा टाइम तो गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि 3-2 उधर ही कर देंगे एग्रीगेट, बट वो मैच वहां से फिसल गया। उससे पहले जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मोमेंट था, दैट वाज अम्बापे का गोल इन 54th मिनट व्हिच वाज ऑफसाइड। अगर वो चला जाता तो मैच उधर किल हो जाता। अमित सबसे इंपॉर्टेंट पूरे टाइम में था मेस्सीज पेनल्टी मिस। दैट वाज अ पेनल्टी जो उसने मिस किया था फर्स्ट लेग में। नहीं देखो, एक बात बताऊं, वी कैन नॉट से दैट। देखो, ऐसे तो आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे मिडलस्ब्रो के मैच में क्रिस्टियानो की पेनल्टी मिस थी। भाई ऐसे तो वो मेसी ऐसे तो बहुत और होते हैं, ऐसे तो बहुत मेसी इंसिडेंट्स और होते हैं वो लिवरपूल वाले गेम में जो भाई। जो कमबैक था, उसमें भी एक मिस किया था, पता है वो लोगों ने, व्हेन दे वर बीटिंग या लिवरपूल एट कैंप नाउ, या वो फिनिश भाई हो मैं जाता एक बात गेम। बताऊं, अगर ये मेसी का पेनल्टी ये मार भी देता ना मेसी, और आप अगर 2-0 के साथ भी आते और आप हाफ टाइम में 3-0 भी जाते, वो जो शिफ्ट ऑफ मोमेंटम पहला गोल पड़ने के बाद जो पीएसजी की मेंटालिटी का हुआ था ना, वो 4 भी मारते थे, हाँ मैं वो उसको सादिक 4-3 सादिक भी ले जाते। भाई, सादिक भाई ऐसे ये बताओ आप, लेट्स से कि ठीक है ये सारी चीज अपनी जगह पर है। इफ वी आर टू टॉक पॉजिटिव अबाउट इट राइट नाउ, अगर हम इसको कुछ पॉजिटिव टर्न देना चाहे, व्हाट शुड पीएसजी डू टू मेक श्योर दिस डजंट कीप हैपनिंग? They have to change their administration on top. भाई they देखो, have I've been they, yeah, I they have to I'm change their born and football bred approach, I feel, I'm Sadiq born bhai. and bred in the UAE, ठीक है ना। हम्म, I always say that के यहाँ के जो जो यूएई के जो अरब्स है ना, जो सिटी को मैनेज करते हैं, बाहर वाले लोगों के लिए क्या है, दे सी एन अरब एंड दे नो कि यार ये सभी एक जैसे हैं, वो सब एक जैसे नहीं है। द यूएई अरब्स आर अ डिफरेंट मेंटालिटी। दुबई और अबू धाबी वाले वो पैसा डालते हैं उस चीज को इनिशियली उठाने के लिए ग्राउंड से ऊपर, और बाद में उसका सिस्टम इतना अच्छा बनाते हैं कि वो फिर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है। दे जस्ट हैव टू कीप एडिंग दैट लिटिल टचेस टू इट। इसी के ऑपोजिट अगर आप सऊदी और ये कतर वाले देखो ना, दे आर ऑफ द थिंग कि भाई पैसा डालो, इसको बड़ा करो, नहीं और पैसा डालो। दे डोंट बिल्ड द सिस्टम। वो कहते हैं भाई हमें पहले ही दिन ना ग्राउंड फ्लोर से 100th फ्लोर पे पहुंचना है। I've been to Saudi Arabia many times. I've spoken to some of the locals there and I was like, यार now you guys are also improving. वो कहते हैं हाँ, इनको तो बस दुबई बनना है, लेकिन ये 50 साल भी रुक जाए तो नहीं आएंगे, क्योंकि इनका दिमाग वो नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो वो कतर में, सऊदी में उनका वही है, जस्ट कीप इनका एरोगेंस। मैं आज तक सोचता था कि नासिर अल खलीफी का कुछ निकला क्यों नहीं है वीडियो, क्योंकि जब वो बात करता है ना, मुझे देख के समझ आया था यार ये वो टिपिकल ओल्ड स्कूल वो जो बेडुइन माइंडसेट है ना, उसका है ये बंदा। और कल उसने दिखा दी अपनी। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे। Abhishek says Messi looked like he doesn't have any passion to play for PSG. What's your opinion? I don't agree with you, Abhishek here, because I कुछ moments थे, दो तीन काफी अच्छे moments थे where Messi dribbled, shoulder करके ball निकाला, plus that chip जो didn't went in. I expected it to go in. मुझे लगा जब वो position में था और जब chip किया ना कि भाई ये goal है, ठीक है, वो गया नहीं। मेसी हैज दैट मैजिक फैक्टर अभी भी, ठीक है। नाउ वी आर
he has been at the top of football for 15-20 years now. आता है यार, drop आता है. You cannot have the same expectations from Cristiano Ronaldo, from Messi. I think we need to adjust as well. Their legs are not the same. हाँ There हाँ is मुझे an भाई. there is an England fan here. Gaurav bhai, I feel you. I feel you. आते हैं भाई धीरे धीरे मेसी सब का पॉइंट्स कल पे. भाई यस मेसी का यस. कल जो वो है ना, कल जो रोल था मेसी का वो डिफरेंट था. आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे ही विल स्कोर द गोल, बट ही वाज बेसिकली प्लेइंग अ एडवांस प्लेमेकर रोल यस्टरडे. दोनों लेग्स में उसने एडवांस प्लेमेकर खेला है. अगर आप Hmm. उसको मेसी नहीं और आप उसको उसकी पोजीशन देख के समझो ना, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि उसका गेम वाज वेरी डिसेंट. Actually, because what I think Sadiq Bhai is PSG kind of implemented Messi in a way that he knows this opposition in and out. He's played against them in the biggest of games, and they tried to use that influence and probably would have asked him, where would you think that you need to be in order to be in space? And that exact place is something which got overcrowded for him both the legs. That's what I Yeah, you feel. know what was the difference? What was the difference? The difference was Messi has played them n number of times. But why in the last 3 years Barca has also struggled, say in the last 2 years, has struggled to defeat Real Madrid? Because since you lost a midfield with Rakitic, Iniesta and Xavi, and since Busquets became, आपके पास वो नहीं था. मेसी ठीक है अपना रोल प्ले करता था, लेकिन Yep. उसके पीछे जो एक ऑर्केस्ट्रेटर होता था ना, इन द फॉर्म ऑफ ईदर जावी और इनिएस्टा, वो मेसी उन स्पेसेस में ज्यादा था. पर उन स्पेसेस को ओपन रखने के लिए, आई मीन नॉट वाइड ओपन बट ओपन इनफ फॉर अ प्लेयर ऑफ मेसी's caliber, you needed a player like Javi to play those balls to him. Absolutely. Absolutely. I think one of the reasons why he kind of declined at Barcelona was because he did not have those two players. It's like wo jo tikdi thi na, they kind of ran the show. अमर सेस, अब कितना भी बोलो मित भाई, ये टीम वीक है मेंटली. पॉच मुझे भी इतना पसंद नहीं है, पर आप ये जो कर रहे हो ये बॉर्डरलाइन बुलिंग है ओपिनियन रखने वालों का. किसका बुलिंग किया मैंने भाई? आई बेंटर Poch. पीपल, आई ओपनली बेंटर पीपल, आई बेंटर विग्नेश अ लॉट. ठीक है यार, कुछ भी बोलो. ठीक है, आप इसको बुलिंग, ये बुलिंग नहीं है. बट यस्टरडे पीएसजी एंड उनके मैनेजर मोरिसियो पोचेटिनो बॉटल्ड इट. कितना भी आप बोल लो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको. इसको बुलिंग नहीं बोलते, फैक्ट बोलते हैं. Like, ठीक है, I see where Amar is also coming from, but ठीक है, it's not like it's bullying, Amar bhai. It's something that football banter consists of. It's not me. यू अमर भाई, आप बोलोगे आपको लुइस एनरिके चाहिए, आई वोंट आर्ग्यू विथ यू. मतलब I'll banter you, I might disagree with you, it doesn't mean I'm bullying you, no. ETH जब गेम लॉस्ट किया था भी आयक्स का, और when he bottled the 2-2 लीड, 2-1 अप था, 1-0 अप था, तो क्या लगता है लोगों ने मेरे को नहीं बोला है क्या? I was also bantered. It's part and parcel. It's part and parcel of the game. वो होता है, वो that's okay. If we are going about talking about Pochettino, I don't know man. मतलब Pochettino को we all know. आशिक भाई आएंगे इसके ऊपर. It's interesting. Tuchel to United आएंगे इसके ऊपर भी हम. पोचेटिनो को जो ये रेगुलर एक टैग मिल रहा है ना, टू बी ए बॉटलर. if we put that this PSG stint of his out of the picture, वो जिस भी क्लब में गया ना, they are not a winning club. वो उस क्लब में कभी रहा ही नहीं है जिसका विनिंग मेंटालिटी हो. तो फिर उससे एक्सपेक्ट करना, क्योंकि अगर आपका टारगेट है टू बी इन टॉप 4, अगर आपका एज अ मैनेजर टारगेट है कि आप मिड टेबल, हाई मिड टेबल फिनिश करो, या आप टॉप 4 फिनिश करो, या तो आप यूरोपियन लीग में, यूरोपा लीग में फिनिश करो, या चैंपियंस लीग, आप उसको अचीव करते हो तो यू आर अ सक्सेस. तो ये डिपेंड करता है कि उसको टारगेट क्या मिलता है हर एक क्लब में. अपार्ट फ्रॉम पीएसजी, अगर इफ यू लुक एट व्हाट स्पर्स में उसको टारगेट होगा, आई थिंक चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन. उससे ज्यादा क्या टारगेट देंगे? मे बी एक कप जीत जाओ इन द सीजन, उससे आगे का तो उनका टारगेट होना नहीं है. साउथहैम्पटन अ गुड हायर फिनिश इन द लीग टेबल. तो पोचेटिनो ऐसे सिचुएशन में फंस गया, या ये बोलो कि उसको ऐसे ऐसे क्लब्स ही मिल गए कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट. देखो प्रत्युष भाई, आपकी बात सही है, लेकिन इसी आपकी ही बात की वजह से आई डोंट वांट पॉच एट यूनाइटेड. क्योंकि नहीं, आई आल्सो ऐसा डोंट वांट मैनेजर पॉच है एट जो यूनाइटेड. बोर्ड आई के वांट एरिक टेन एक्सपेक्टेशन, हाग. मतलब एक होता है ना, एक एम्प्लॉय होता है, वो सोचता है यार मेरे को इतना टारगेट मिला है, मैं इसको इतना फाड़ के और ऊपर तक
पूरा करूं। एक एम्प्लॉय होता है वो बोलता है बोर्ड मुझे इतना दे रहा है, इतना मैं इजीली अचीव कर सकता हूं, लेट मी डू दैट। अब यूनाइटेड में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे भाई ना सादिक भाई हिस्टोरिकली यहाँ पे वी क्या आर बोलूंगा विनर्स, मैं, नहीं सादिक भाई हिस्टोरिकली यहाँ वी पे, आर विनर्स, हमारे जैसे फैंस वी आर विनर्स। लेकिन इस वक्त उस ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स हैं और उस बोर्ड में जो एडमिन वाले हैं ना, वो कोई विनर्स नहीं है। नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सादिक भाई ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे मान लो कि इफ वी आर लुकिंग एट पोचेटिनो एट स्पर्स, और उसने चैंपियंस लीग फाइनल बॉटल किया था, बट फॉर स्पर्स टू बी इन चैंपियंस लीग फाइनल इज टू बिग। Yeah. उनका एग्जैक्टली। लिए वो बहुत बड़ा चीज है। तो ही ओवर अचीव व्हाट एनी मैनेजर कुड डू एट स्पर्स। ना ही उसके हमारा पहले हुआ, ना ही उसके बाद हुआ। बट एट पीएसजी का उसका पूरा जो बैकग्राउंड है ना पीएसजी का, वो इतना टॉक्सिक है दैट यू कांट एक्सपेक्ट एनी मैनेजर टू डू एनीथिंग आउट। कोई भी मैनेजर आप ले आओ, उस टॉक्सिसिटी में नहीं कुछ कर सकता है। ये प्रत्युष का स्क्रीन चला गया है, कोई बात नहीं। अमर भाई बोल रहे, मैं इतना सीरियसली नहीं बोल रहा था, मजे में ही बोल रहा था। अरे ठीक है अमर भाई, बट देन I'll tell my honest thoughts about Pochettino today. I don't think I've ever done that. ठीक है, he is a good builder of the squad. मैं जितना भी बेंटर करता हूँ, I like it. I enjoy mentoring Pochettino and to the people who love Pochettino, मजा आता है। ठीक है, कल सिर्फ पीएसजी का वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, काफी लोगों का ब्रेकडाउन हुआ था। ट्रस्ट मी, आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट। आगे बढ़ना। Only thing I knew popular was cappuccino. Now we got another अरमान bottle. भाई it's nice to banter, it's very nice to banter, बट अगर आप अपने आप को पोचेटिनो के हिसाब पे रखो, से आई एम नॉट अ पोचेटिनो, लाइक आई डोंट लाइक पोचेटिनो, मैं खुद पोचेटिनो का फैन नहीं हूं बहुत अरे ज्यादा। आई प्रत्युष रुक तो वांट जा, एरिक टेन आप तो हाग। बीच में से काट लिए पूरा मेरा लाइन। बोल 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 So for me, Pochettino is a good squad builder. उसने साउथहैम्पटन से कुछ अच्छा काम किया है, स्पर्स में भी काफी अच्छा काम किया है। स्पर्स wasn't a regular top 4 team, he took them to regular top 4 team. मेरे लिए वो एक सीएल फाइनल से ज्यादा वो मायने रखता है कि he was consistent in that stuff over there. But I think that's his ceiling. I don't see him as a Peps and Klopp's का level का manager. I don't see him. So, but then उसका काफी सारा इंस्पिरेशन आता है that comes from our 92 का क्लास. He loves Manchester United. तो कुछ काफी सारे फैक्टर्स हैं which I like about Pochettino. I think he is a decent personality as well. ठीक है, but then जैसे ओले में हो रहा था, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स लॉसेस, काफी सारे लोगों ने कहा था कि दैट्स हिज सीलिंग, ही हैज अचीव्ड इट, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, एंड प्रोबेबली दे वर राइट। तो ऐसी बात है। आई डोंट सी पोचेटिनो एज दैट elite manager which Ten Hag has the potential to do so. That's टेनहैग और पोचेटिनो का जो करियर का अभी स्टेज है ना, बहुत डिफरेंट है। टेनहैग इज अ न्यू अपकमिंग मैनेजर, पोचेटिनो इज एन एस्टैब्लिश्ड मैनेजर। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। टेनहैग अभी किस डायरेक्शन में जाएगा विद दैट बिग मूव, आपको नहीं पता अभी। By the way, एक न्यूज आई थी, after this news I'll move on to the Chelsea stuff. ठीक है, I want to talk about Chelsea. Manchester Evening News, it's not one of my favorite publications, ठीक है, but they said that 9 players should be sold. Yeah, it's an opinion that they gave. Yeah, 9 players plus 3 फ्री में जा रहे थे, that's 12। कल ही हमने किया था बिग बिलियन सेल, ठीक है, 1 बिलियन का हमारा स्क्वाड है, उस देख पे लिया हमने उन्होंने भी ऐसे शायद ही वीडियो, उड़ाए थे। वीडियो देख लिया है हमारा। उन्होंने। सो इस पे भी बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी हियर। What do you see Thomas leaving Chelsea and United being one of the potential suitors? उसमें मैं कनेक्शन एक बताता हूँ। थॉमस का जो मेंटर है, इट्स राफ रैग्निक। Could that factor play an important cog in the cycle of managers who will go for Manchester United? And if you are in that shit situation, Thomas might want to leave. देखो, इट डिपेंड्स कि मई 22 है ना, इन्होंने जो डेट दी है व्हेन दे विल रिव्यू द सैंक्शंस अगेन। मई 22 तक चेल्सी का फंक्शन में आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा, अदर देन
obviously the attendance going down, the sponsorship logo being taken off, लेकिन in the larger स्केल ऑफ थिंग्स ये होगा कि उनका जो अवे ट्रैवल है वो थोड़ा सा मतलब वो फर्स्ट क्लास चार्टर्ड फ्लाइट से हटके दूसरा आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी सैंक्शंस हैं कि द मैक्सिमम दे आर Correct. अलाउड टू स्पेंड ऑन अवे ट्रैवल्स इज 20,000 पाउंड्स. दे आर ओनली अलाउड टू स्पेंड 20,000 पाउंड्स. और जो लील वाला जो है उस पे उनका वो नहीं है, क्या कहते हैं, लील वाली जो अभी टिकट्स हैं दे आर ऑलरेडी पेड ऑफ फॉर, बिकॉज दैट मैच वाज ऑलरेडी प्लान्ड ना. पहले से उनको पता था वी हैव टू प्ले लील ऑन दीज डेट्स. लेकिन अब एफए कप में आगे इनका कौन सा अवे फिक्सचर होता है. खैर एफए कप तो ये है कि इट्स अ लोकल वन, तो वो टीम बस यूज करके जा सकते हैं, द कॉस्ट वोंट बी दैट मच एंड दे कैन स्टे एट द अवे टीम्स होटल, तो अगेन दैट वुडंट मैटर मच. लेकिन जो आगे यूरोप के जो फिक्सचर्स हैं उसमें यू डोंट नो कि उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने होंगे. दूसरा ये है कि मई 22 के बाद आपको पता चलेगा इफ द सैंक्शंस कीप ऑन गोइंग ऑन, क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज they have we are using the word seizure, but his assets have been frozen. Yeah. तो लीगल लेक्सिकॉन में इतना फर्क है कि अगर आप सीजर बात करते हो तो गवर्नमेंट लेके बिना पूछे बेच देती है when they seize it. When they freeze it, on the other hand, the current owner has to give the government explicit permission. उसका कुछ टाइम फ्रेम है, कितने टाइम फ्रेम में, या तो ही हैज टू फाइल उसको रीगेन करने के लिए, या एक वो क्या कहते हैं एक अपील फाइल करने के लिए, या ही हैज टू अप्लाई फॉर दिस कि भाई आप उसको बेच दो, उसको इजाजत देनी पड़ती है. इफ ही गिव्स दैट परमिशन then the club will be sold probably within that much amount of time. To whom it is sold, most likely it will be someone, seems like it कि कोई glazer type या कोई consortium type लोग ही ज्यादा जल्दी हो सकते हैं जो उसको खरीद लें. But अगर the club is sold, तो then they will be back to their old functions, and maybe the war chest that Chelsea had before won't be the same. It will come to a situation like what United has, or what Spurs has, या उस तरीके से. The more dire circumstance here is कि 22 मई तक कोई रेजोल्यूशन नहीं होता, and that is possible because Chelsea is not the largest piece of Roman Abramovich's entire portfolio. And I even was talking to another channel earlier on in the evening कि जब आपका these people, these billionaires are people with massive egos, and plus massive egos, here you have a massive geopolitical situation at the background of it all. So you don't know if Roman then finally I understand Roman loves the club and everything, but when वो क्या कहते हैं, जब अपने पे बन आती है और जब मरता क्या नहीं करता वाली जब बात होती है, तो उसमें फिर he may just say okay, let Chelsea struggle, I'll like when push comes to shove, he will try to create pressure from the fans onto the government. You get my point? Like he will hold his ground, so the club starts suffering with potential of possibly they won't go into administration till the 1st of July if they go into it, क्योंकि 1st of July तक तो ये सीजन का है ना, सारी चीजें ये सब तो पेड है, इसमें से काफी चीजें पेड होती हैं. Yeah. 1st of July के बाद all the Chelsea fans who say that Chelsea is self-sufficient, it is not absolutely true, because every club files a debt every year. यूनाइटेड वाले अपनी डेट फाइल करते हैं, फिर उसके ऊपर वो हमें तो पता है वो अंडरराइट करते हैं, फिर वो उसको दूसरी तरफ बेचते हैं, फिर वो डेट नहीं दिखाते हैं. डिविडेंड निकालने के बाद फिर जो उनकी सारी कंपनी की डेट होती है वो अगले सीजन के स्टार्ट से पहले हमारे ऊपर आ जाती है. पहले प्रॉफिट दिखाते हैं, उसमें से डिविडेंड निकालते हैं, फिर उसके ऊपर डेट डाल देते हैं, तो ये चलता है. नाउ चेल्सी का क्या होता है कि वो जो डेट आती है, अभी भी पिछले साल भी अराउंड 100-150 मिलियन पाउंड की कोई डेट थी. जब वो डेट आएगी तो उसको अंडरराइट करता था अब्रामोविच अपने एक चेक के उससे. नाउ वो डेट और बढ़ के आएगी इस दफा, बिकॉज एज वी आर हियरिंग द शर्ट स्पॉन्सर्स आर नॉट देयर, तो वो पैसा गया. Revenue from ticket sales is not going to come for the rest of the season, and the highest costing seats are coming up next the deeper Chelsea goes into the Champions League. Champions League revenue जो आएगा वो भी क्लब को नहीं मिलेगा, वो आएगा और वो फ्रोज हो जाएगा. So all that revenue जब जाएगा तो डेट और बढ़ जाएगा. 1st of July या इनकी जब भी बुक्स फाइनल क्लोज होती हैं ऑफ द ईयर, they will be showing a debt.
which they are not able to pay off. Yeah. जब ये होएगा तो डर्बी वाला सिचुएशन आ जाएगा कि you don't have the finances to sufficiently work in the next season. Then the administrative stuff will come up, because when the government will not be able to sell it, then they will go into seizure proceedings. When they go into seizure proceedings, तो उसमें फिर ये होता है कि कोई भी एसेट आपने सीज किया आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देते हो, या वर्स कम टू वर्स आप उसको लिक्विडेशन में डाल देते हो. So guys, right now close to 30 people are watching us. Thank you so much for joining in. We are talking about a lot of stuff here, including Chelsea, Manchester United, some life aspects as well. अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो चेक आउट आवर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. अगर हमारा ट्विटर पसंद ना है ना तो मैं ये रोज बोलने लगा हूँ, आप मुदित भाई को रिपोर्ट कर देना, ठीक है? रोज के 10 ट्वीट डालते हैं, ठीक है? अच्छा काम नहीं कर रहे तो रिपोर्ट करो, वरना फॉलो करो. जोजो की मेरे नीचे भी एक बंदा है जोजो, उसकी वजह हुआ मैं फिर. We are against इशू है. Let's come back to that Tuchel one now. If Tuchel come to United? 22 मई के बाद अगर Tuchel फॉर एग्जांपल आपको समर तक ये रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिखता, then Tuchel will be at the helm of a club जिनके 3 main defense line will be obliterated because they cannot re-sign the contracts. So Rudiger will be gone, Aspi will be gone, and Rudiger I think it's gone. खत्म है वो. हाँ, Rudiger तो गया ना, क्योंकि आप रीसाइन नहीं कर सकते ना उसको. लेकिन रीसाइनिंग की डेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड की डेट आती है यूजुअली 30th जून होती है आई थिंक. उसके बाद आप नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन करते हो. तो रूडिगर प्रोबेबली अगर वो, मैं वही कह रहा हूँ, 22 मई के बाद आपको सब समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है. वेयर चेल्सी, आई डोंट थिंक रूडिगर का इतना ड्रैग होगा. नहीं, उसका ये होगा कि अगर 22 मई तक कुछ नहीं होता ना, देन ही इज गॉन, क्योंकि देन आपके पास टाइम ही नहीं है ना उतना. नेक्स्ट अपील तो तारीख पे तारीख चला जाएगा. बाकी 2 प्लेयर्स हैं उनका बार्सिलोना के साथ, दे आर वेरी क्लोज. क्रिस्टियनसन एंड वन मोर, कौन था, आई फॉरगॉट. मतलब दे कांट रीसाइन देम ना, उनको रीसाइन नहीं. और दूसरा मसला ये है, आई वाज चेकिंग अनदर थिंग, कि जो इतनी बड़ी जो लोन आर्मी है चेल्सी की, द लोन आर्मी विल कम बैक टू देम. ठीक है, दे विल हैव दिस गुड रिजर्व ऑफ प्लेयर्स, बट द प्रॉब्लम इज with these sanctions, how many additional people will they be able to register on their payroll if they continue into the summer? तो जो लोन मर्चेंडाइजिंग पे बैन है, वो भी वापस नहीं आ सकेगी टेक्निकली. मर्चेंडाइजिंग पे बैन कर दिया है. सब कुछ बैन. रेवेन्यू हर जगह से आपका स्क्वीज कर रहे हैं. और मेन थिंग, इफ अब्रामोविच वांट्स टू सेल दिस क्लब and he allows the government to take it over, first of all he needs government to take it over. अगर वो नहीं होता है, अगर वो होता भी है तो एक भी पैसा उसको वापस नहीं मिलने वाला है, not even a single penny. Exactly. सब फ्रोजन चल जाएगा, सब फ्रीज हो जाएगा. देखो क्या होता है, जब हम जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कुड़की, जब आपकी कुड़की की जाती है ना, तो उस वक्त आपके एसेट्स को बेचने के लिए वो किसी भी तरीके से, वो जो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज होती हैं वो किसी भी लिमिट पे चली जाती हैं. वो आपको बिल्कुल क्या कहती हैं, अगर वो एसेट नहीं बिक रहा तो उस एसेट को डीवैल्यू करते हैं. हाँ. सो देन क्या होगा, देन द हार्म टू चेल्सी एज अ क्लब वुड बी कि अगर एसेट डीवैल्यू हो गया तो देयर विल बी मोर पीपल इन द मार्केट हु विल बी एबल टू बाय इट. बिल्कुल. नाउ इमेजिन अ पर्सन लाइक माइक एशली बाइंग द क्लब. You are it. Abhishek says, I mean, honestly, I've got my own cousin. He is in the UK. He's a Chelsea season ticket holder. Okay. उससे मेरी आज बात हो रही थी, and he was like, dude, I have no idea. ये तो गया क्लब, अगर ऐसे गया तो. So अविनाश का एक low key point I mean, है he जो honestly told me that. I mean, he was in a joking manner at that time, but he said, देखो, let's see, because the one thing that he's hopeful of, क्योंकि चेल्सी इज बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट लंदन इन वेस्ट केंसिंगटन. इनके सारे जितने भी जो बड़े एमपीज हैं और जो बड़े लोग हैं वो सब चेल्सी फैंस हैं. चेल्सी इज अ पॉश क्लब. बिल्कुल.
तो उसका कुछ प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से दे माइट just bend some rules here and there and expedite the sale and get things moving. This is what I'm saying. 22nd May के बाद whenever Thomas Tuchel is available, I mean, I'll be very very honest with you कि अगर इसी तरीके से चला and 22nd May nothing resolves, then Thomas Tuchel will be stuck with a bare bones team, या a team that is not able to do much. So obviously, I mean, he's a very loyal guy. I'm not doubting his loyalty towards the club. बट अगर आप एक कंपनी में हो जो आपको पता है कि यार ये कंपनी बंद होने वाली है और आपको दूसरी एक थोड़ी नीचे लेवल की कंपनी अगर ऑफर करती है जॉब, तो आप जाहिर सी बात है उस जॉब को जाओगे, विच इज मोर स्टेबल. लेकिन सादिक भाई यहाँ पे बात ये है ना कि डू वी नीड टूचल. हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फॉर अ रिबिल्ड ऑफ द क्लब. टूचल का कोई एक्सपीरियंस है रिबिल्ड करने का? ओ भाई, सबसे ज्यादा ही है उसका. रैग्निक अपने बच्चे क्लब उसके पास छोड़ के गया है. हॉफनहाइम को उसने थोड़ा सा बनाया, टूचल छोड़ के गया. छोड़ दिया, भूल गया मैं. फिर जब क्लॉप गया डॉर्टमंड से, तो डॉर्टमंड तो हर 3 साल में एक रीबिल्डिंग फेज में आता है. हाँ, वो डॉर्टमंड. I want to address this point, Pratish. I want to address this point. कि little bit sadistic thinking about United have a chance of getting into top 4 if Chelsea gets a point deduction. Abhishek, let me make this very very clear to you. ठीक है, let's assume कि Chelsea का point deduction हो जाता है, ठीक है, तो Arsenal and Spurs will finish above us. नहीं, एक तो ये है, और दूसरा point deduction never applies to the previous season. It always applies to the next season. हाँ, तो ये सीजन का पॉइंट डिडक्शन नहीं होगा, वो नेक्स्ट सीजन विद अ -9 या -10 जो भी रहेगा वो ऐसे स्टार्ट करेंगे. उससे स्टार्ट करेंगे वो लोग. और वो भी बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल है, वो भी इस वक्त बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल है. अगर हाइपोथेटिकली फिर भी इस सीजन अगर डिडक्ट होता है ना, फिर भी यूनाइटेड विल नॉट फिनिश इन टॉप 4. भाई अपना फॉर्म है, कुछ भी बोल दो. असली दुख तो कमेंट्स में आदित्य को है. मरीना भी चली जाएगी बोल रहा है. अरे यार मरीना को अपने बोर्ड में ले आओ यार. हाँ, bring her in ना. लेकिन I mean, Tuchel भी नहीं चाहिए. राल्फ एंड मरीना वोंट वर्क टुगेदर ना. दो लोग डिसीजन मेकर नहीं हो सकते. अरे बहुत जबरदस्त वर्क करेंगे. राल्फ स्काउट करके प्लेयर ढूंढेगा, मरीना उसको नेगोशिएट करके चीप लेके आएगी. परफेक्ट कॉम्बो है भाई. चेल्सी में कौन काम करता है? चेल्सी में वो कौन था? अपना ही बंदा गया था ना चेल्सी में स्काउट में. क्या नाम है उसका? अपना ही उठाया था चेल्सी ने 2000s में. करेक्ट, याद नहीं है मुझे. उसी ने तो पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड किया था. एंड मरीना वाज यूज्ड टू क्लोज द डील्स. लेट्स सी. बहुत मुश्किल है कि इतना सेंसिबल डिसीजन हमारे बोर्ड से आए. वो नहीं आएगा, वो तो अरे गारंटी नहीं आएगा. अपन ला रहे हैं पॉच, मैं बता रहा हूँ, लिख के रख लो. हरमन भाई 7th क्यों, 8th रखो. कॉन्फ्रेंस लीग आ जाएगा, 8th रखो. लीग आ जाएगा, 8th रखो. 8 चाहिए. हाँ, कॉन्फ्रेंस आ जाएगा तो उनके पास पैसे आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी अच्छा है. हाँ, deluded as usual United fans try to earn that spot. अरे भाई, आप सुन रहे हो क्या पॉडकास्ट? आर यू लिसनिंग? ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो सकते हम. इससे ज्यादा रियलिस्टिक नहीं क्या हो सकते. 8th नहीं बोले? कौन सा पोजीशन आपके हिसाब से बोले? जरा बताइए कमेंट में. अरे we said कि even if anything, first of all the season there won't be any negative deduction to Chelsea regardless of what happens, क्योंकि it's all post उसमें होता है, रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होता कुछ भी. डैनियल जेम्स आते ही सब भाई. डैनियल जेम्स इज अ गुड प्लेयर. उसका एफर्ट रहता है जो कि आज हम किसी भी टीम से नहीं देख रहे हैं कि उसका कोई एफर्ट है. बट डैनियल जेम्स इज अ लिमिटेड प्लेयर. हमको अगर ग्रो करना है ना, तो हमको एवरेज प्लेयर से ऊपर उठना पड़ेगा. आज हमारे क्लब में ना सारे एवरेज प्लेयर्स भरे पड़े हैं. लेकिन अगर हम वी वांट टू win titles and challenge for titles, we have to have good players, not average players. If passion से सब कुछ नहीं होता है. नहीं, and honestly speaking, it's not something that we are, any of us are at all pleased about. I mean, any club going under, any club going out, it's not a good thing. Yeah, no. That's sports should be different ना. Sports को politics से mix करना is not good. Sports अपनी जगह पे है. Agreed. But honestly, I feel bad for Chelsea. It's not something that we should be happy about. But Chelsea is a club. No one is happy about.
Mudit bhai, no one is happy about this. As a United fan, as a footballing fan, I hate it that a club has to suffer because of something happening in Russia and Ukraine, जो भी issues है. And it's just not about football. This goes beyond football. जो Russians है, they will be suffering there too for different reasons. आपके businesses है, you are a businessman. आप अलग अलग countries में जाके business कर रहे हो, you provide employment, you do a lot of things I for mean, this running shows big. the hypocrisy, na. I was हाँ, listening to Drogba, ba. He was very. I mean, and I had a conversation with him also. He's, मतलब he's clear, na, कि you are banning these nominal things दिखाने के लिए, and the real thing, the Russian oil and gas, you are still exporting it. because you don't have expert ना, आप ईरान से ले नहीं सकते हो, मिडिल ईस्ट से आपने झगड़ा कर रखा है, तो आपके पास रशिया ही अरे बचता है। भाई महंगा पड़ेगा. महंगा I भी was पड़ेगा, करेक्ट। yeah, I was plan I almost went to the UK last year to migrate over there. उधर के हालात जो इस वक्त है ना, टैक्स उन्होंने इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं. एक पीपल आर एक लिटरली, अगर इस पे ये लोग ऑयल और गैस उधर से नहीं लेंगे ना, तो इनकी जो पब्लिक है ना, निकल के मारेगी इनको. एक पोस्ट आया था फ्रॉम अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट कि चेल्सी का ये जो हुआ है स्पॉन्सर्स दे वांट टू रिमूव द नेम, देयर आर पीपल रनिंग टू नॉरिच टू गेट द ब्लू जर्सीज, ऐसा एक आया था ऑन अ फनी साइड. आई थिंक it's a bad situation, very bad It's a very situation. bad situation for And it's an Chelsea. unfortunate situation. I mean, the club has Yeah. nothing to do with it here. The club should not be penalized for it. The club, Yeah. the fans, the supporters, everybody suffers. Everyone, ना. everyone, सिर्फ everyone. financial I mean, reasons club नहीं is होता a है, whole ना. everybody suffers. आप जब क्लब बोलते हो तो आप सबको ही. Exactly, everybody suffers, and हम लोग को पता है पिछले 9 साल से हम सफर कर रहे हैं from 2013 onward, तो पता है how it feels like. अगर ये कंटिन्यू होता है and Chelsea I don't know कितना साल लगेगा उनको वापस आने में. वो वापस आएंगे कब आएंगे, when they will be again challenging for titles and all. वही बात है ना. ओनर आता है, you never don't know anything about it right now. The only good thing that Chelsea has done to sustain, I mean, I'm pretty sure they did not do that to foresee something like this, but their academy. Absolutely. I was coming to this point. They previously faced such a situation, in terms of transfers. You remember when they had a situation in which they were banned for a transfer window? They absolutely had no problems in dealing with that situation. I didn't see them faltering or suffering because of those bans. They have a pretty strong setup internally with the academy and with the players that are on loan. They can do a lot with what they have, and they are a big squad, man. They're still a big squad. Yeah, they should be able to, but मुदीत भाई बात ये होता है ना, if जो पैशन के साथ एब्रामोविच इस क्लब को रन कर रहा है, I don't see any other owner coming and showing the same passion for Hey, the club. Abramovich has been one of the best owners in the Premier League history. Absolutely. I mean, if not the best. So it will be a big loss for the league, especially for Chelsea. But it's something that you know you just can't make this shit up. It just happened. It blew up. It's over. And now we have to kind of wait and see कि आगे क्या decision होता है. There is a chance that they might be able to salvage the situation, even though there won't be Roman Abramovich at the helm. But there is a chance they could come back from this, but it's a very, very minor chance. वेरी माइनर चांस मुदीत भाई, क्योंकि जो नया ओनर आता है उसके क्या पॉलिसीज रहते हैं, वो क्लब को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है. एवरीबॉडी हैज डिफरेंट आइडियाज. A part of me, Pratish bhai, a part of me wants them to suffer the way we've suffered with Glazers, not in terms of what they've spent, but in terms of how they run the club. But फिर भी लगता है कि भाई किसी को ये ना मिले, कुछ भी मिले ये ना मिले. नो बट Fair enough. वही बात है. एंड इट्स, देखो ये तो भी देखने की बात है. अगर ये 22 मई से पहले इसको सेल ऑफ कर देते हैं क्लब को, जो भी ओनर आएगा, आई मीन मैं तो कहता हूँ अगर ग्लेजर्स जैसे भी आ गए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड ने जो मिस्टेक कर दी थी ना, वो ये थी कि आफ्टर द क्लास ऑफ 92 एंड आई थिंक अ लिटिल इन्फ्लक्स इन 96, उसके बाद हमारी एकेडमी ने कोई वैसा टैलेंट या वैसा बैच ऑफ टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया. Yeah. थोड़ा एकेडमी पे से ना अटेंशन हट गया था. Hmm. But Cobham has been continuously giving out talent. Yep.
दैट्स अ डिफरेंस। वो नहीं तो ऐसा है कि अब 5-6 साल हमारा भी अगर यूथ अब देखे तो दे आर गुड, दे आर कमिंग बैक, लाइक जो एक्सपेक्टेड लेवल था दे आर कमिंग अप। जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, कुछ प्लेयर्स बहुत एक्साइटिंग है उसमें, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम एज वेल। So, a few of our friends were at Old Trafford yesterday. They witnessed the 3-0 victory. Amazingly played by our under 18s. मजा आ गया यार, क्या मजा आ गया, क्या goals मारे हैं. Some of the players I think should be integrated in the first squad. Amazing. But हाँ, tonight we're not gonna talk about our academy. Tonight we'll have a full video on it very soon on academy players, detailed video. Apart from that, जो ये आदित्य ने कमेंट किया है, Ten Hag to United, new philosophy, new United, hope to excellent results. परफेक्ट, आई एग्री, बट इसका जवाब ना हेस्टो गेमिंग ने दिया है, who is a Liverpool fan. सेम मेंटालिटी, प्लेयर्स बॉटलिंग चांसेस, टैनक कैन नॉट डू एनीथिंग, उसके पहले प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे. आई एग्री दैट वी नीड अ क्लियर आउट एंड वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन for any manager to succeed, let alone be Ten Hag or Pochettino or anyone. Because if this same set of players with, let's say, two more players, two changes will ruin our next season नहीं बोल रहा हूँ, seasons, if we don't start the clear out this window. बहुत लंबा जाएगा भाई ये रीबिल्डिंग प्रोसेस. वही देखो, ऐसा है ना कि रीबिल्डिंग, हम हमारे साथ इशू क्या होता है एज अ फैन बेस, हम भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम एग्जैक्टली तुरंत जीतना शुरू करें, नहीं होता है. हम जिस सिचुएशन में है ना, इफ वी गो इनटू अ रीबिल्ड, वी हैव टू बी पेशेंट फॉर नेक्स्ट 3 विंडोज, एटलीस्ट 3 समर विंडोज, तब जाके हमारा कोई स्क्वाड बनेगा दैट विल बी रेडी टू हैव एन इम्पैक्ट इन दैट टॉप 2 टॉप 3 एरिया. उसके पहले नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा. इट्स अ वेरी टफ जॉब. बोलने में इजी लगता है कि इसको बेच दो, उसको बेच दो, ऐसे बेच दो, वैसे बेच दो. जो आपका वेज स्ट्रक्चर है, प्लेयर्स क्यों छोड़ के जाएंगे आपको वहां पे? बैठ के उनको पैसे मिल रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे उनको अपना सैलरी से कट ऑफ लेना पड़ेगा. दैट सारे 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 क्लब्स जो है ना, तुम्हारे प्लेयर्स की वेज स्ट्रक्चर को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. इफ यू लुक एट पॉल पोग्बा, कितने क्लब्स है जो पॉल पोग्बा के लिए जाएंगे विद हिज सैलरी डिमांड्स? Apparently he is close to Juventus. या ही इज क्लोज टू यूवेंटस. ठीक है, यूवेंटस तो ऐसे भी लेती है वो से प्लेयर्स को, बट देयर आर फ्यू प्लेयर्स. टीम ना पीएसजी ले सकती है, यूवेंटस ले सकती है, एट सम पॉइंट रियल मैड्रिड ले सकती है. बाकी कौन टीम है जो इस तरह का हाई वेज देगी? अगर अगर हाई वेज, अगर जो स्ट्रक्चर है हमारा वेजिंग का, अगर वैसा स्ट्रक्चर रेगुलरली तुमको जो है ना बड़े बड़े टीम्स में दिखाते हैं, तो why would have Liverpool stopped themselves from giving Salah that मैं अब new इससे wage अंदाजा premium लगाऊं ना, चाहिए. मैं आज एक हाँ हाँ, मैं आज की आई भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देयर इज अ हाई चांस कि न्यूकासल इज शोइंग इंटरेस्ट टू गो फॉर रूडिगर as well in the Okay. summer. Now that, लेकिन you know what's the snag there? Newcastle has a wage cap until they touch Europe of 200k. से ऊपर वो किसी प्लेयर को नहीं देंगे. Even they have that. इतनी अकल उनमें भी है कि भाई we have to keep our wage structure in a certain way. इसलिए नहीं कि आपका सैलरी कैप है. ईपीएल में कोई सैलरी कैप नहीं है. There is no rigid salary cap. लेकिन होता ये है कि अगर आपने इतना ज्यादा वेज दे दिया है, तो अगर आपको उस प्लेयर को जब बेचना है बाद में, तो आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पर्सनल टर्म्स ही अग्री नहीं होते दूसरे क्लब से. एक क्वेश्चन पूछा था आशिक ने, हाँ, व्हाट अबाउट पॉल मिचेल टू यूनाइटेड. पहले आशिक भाई, मेरा नाम सिर्फ MWT मीत है, H नहीं है नाम में, जस्ट सेइंग. पॉल मिचेल टू यूनाइटेड, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई डोंट नो, कुड बी. वो और रैग्निक स्पॉट तो हुए थे साथ में, बट आई डोंट नो, वी ऑलरेडी हैव अ गुड स्ट्रक्चर, गुड इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड बोर्ड्स माइंड्स, एक्चुअल में गुड नहीं है, ठीक है. तो फ्लेचर इज देयर, वी गोना हैव रैफ रैग्निक एज द कंसल्टेंट. डिफिकल्ट है, कैसे प्लेस करेंगे पॉल मिचेल को वहां पर? नो आइडिया मैन. पॉल मिचेल को, और क्यों जाएंगे हम पॉल मिचेल के लिए? क्यों जाएंगे हम उसके लिए? वी डोंट नीड दैट. हमारे साथ इशू ये होता है ना, एज अ फैन बेस भी हम अगर बात करते हैं, या इंडिविजुअली भी, मैं भी ऐसे ही देखता हूँ, ये अवेलेबल है, लेट्स ब्रिंग हिम. ये अवेलेबल है, लेट्स ब्रिंग हिम. ये अभी दिख रहा है, लेट्स ब्रिंग हिम. भाई जो है उसको काम करने दो ना पहले.
आपके पास राल्फ एक अभी है ना, तो क्यों सब कुछ चाहिए अभी के अभी? लेट हिम डू हिज जॉब। अगर वो फेल होता है तब फिर हम दूसरे ऑप्शंस पे देखेंगे ना। अभी ही इज देयर, वो अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया अभी। अभी उसका काम स्टार्ट होगा समर में, ये सीजन एंड होने के बाद। अपन ने तो डिस्कस उसके किया बाद पॉल देखते मिचेल हैं। पॉल मिचेल और आई थिंक रैंगनिक is taking tips from Mitchell a bit, getting a little bit knowledge with regards to you know कुछ सलाह देने के लिए या कुछ what he's seeing for as an outsider rather आउटसाइड than या मुदीर भाई, इसको ऐसे when भी देख people सकते हैं ना work in कि a United job, when a manager works in a United job, they often tend to miss out a lot of stuff on the outside. इतना stressful job है ये, और he probably needs a different opinion, which is why I think Mitchell comes in. एक या एक मुदीर बहुत बहुत सही कमेंट आया है, पॉगबा इज अ डिफरेंट ग्रेवी। हेस्टो भाई, ये ग्रेवी कैसा है पता है? पॉल पॉगबा ये ऐसा ग्रेवी है कि आप शेजवान चटनी बनाओ, उसमें सॉस डालो, उसमें हरी चटनी बनाओ, उसमें बाद में खजूर की चटनी बनाओ, और जो टेस्ट बनता है ना, ये ग्रेवी है वो। ठीक है। ये हॉस्पिटल में रहता है 6 महीना दुबई के, शायद एक बार शायद मिलने भी जाते होंगे, पता नहीं। हॉस्पिटल में नहीं होता है भाई। 2-3 बार कॉल आया होगा, इन्होंने उठाया नहीं होगा। यार इतनी वो इतनी डिफरेंट ग्रेवी है ना कि मेरा मूड ही नहीं हुआ जाके उसको देखने का। आई वांट पॉगबा coming गॉन मैन। coming back to Paul Mitchell one, I think there might be a chance कि राल्फ रैंकिंग सोच रहा है कि इसको अभी से इन्वॉल्व रखते हैं इन 2 years when I will be ready to go on move on, क्योंकि उसको भी रिटायरमेंट है बहुत नजदीक आ रहा है। देन माइट भी जो वो स्ट्रक्चर रेडी करेगा उस पे पॉल मिचेल को इंट्रोड्यूस करके वो निकल जाएगा, फॉर पॉल मिचेल टू डू द जॉब कंटिन्यूअसली आगे जाके। तो उसके साथ एक कंसल्टेंसी रूल में अपना काम कर रहा है, एंड ही इज इन कांटेक्ट विद हिम कि वो क्या चाह रहा है, क्या देख रहा है। बिकॉज ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि राल्फ रैंकिंग का एज भी है, तो ही इज नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर टू लॉन्ग। वो 4-5 साल तक मैक्सिमम रहेगा इफ ही इज डूइंग अ गुड जॉब। तो उससे बाय ज्यादा द तो वे, वो एक ब्रेकिंग न्यूज आया है फ्रॉम जोनाथन श्राइगर, वेरी क्लोज टू द क्लब। I'll rate him a top tier for Manchester United। भाई क्लब के इनसाइड्स होते हैं उसके पास लीग लाइनअप होती है दुनिया में सबसे पहले। ठीक है, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हिज सोर्सेज। ही सेज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड लोनी जेम्स गार्नर, साउथहैम्पटन माइट गो फॉर हिम। दे आर लाइक मॉनिटरिंग हिम। फॉर Loan? लोन और टू बाय। आई डोंट थिंक इट्स मेंशन्ड कि वो लोन के लिए गया है कि बाइक के लिए, बट I will consider it as a loan, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड कंसीडर भी करेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि गांडा को सेल करने का। हरमन भाई, टेन हाग इज स्पेशल। हरमन भाई, टेन हाग का साथ फायदा आपको ये है ना कि एक तो ही इज एन अथॉरिटेरियन, लाइक डिसिप्लिनेरियन है वो वहां पे, जो आपको ये बता सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी नो क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन इन द गेम, ऑफ द पिच, ऑन द पिच, दोनों में डिसिप्लिन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम ये बोलते हैं ना कि आप ये गलत काम मत करो, सोशल मीडिया पे मत डालो, ये मत करो, दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। आपको ऑन द पिच डिसिप्लिन सिखाना भी चाहिए, भी सिखाना होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ऑन द पिच डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑन द टीम। स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर लाने की कोशिश किया रात ने, द प्लेयर्स वे नॉट एबल टू अडॉप्ट टू इट। आपका प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन रहते हैं, अपना पोजीशन छोड़ देते हैं। आप पिछला मैच उठा के देख लो ना, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, रेगुलरली लिंडलॉफ वाज गेटिंग ड्रैग्ड टू द राइट बैक पोजीशन। क्यों? क्योंकि एलन वन-बिसाका वाज नॉट एबल टू, मैकटोमिनी वाज नॉट एबल टू डू हिज जॉब। मैकटोमिनी का जॉब था वहां पे कवर करना। उन्होंने 3 प्लेयर पुट किए थे अगेंस्ट एलन वन-बिसाका, एंड दिस वाज द गाय हु वाज गेटिंग ड्रैग्ड बैक, और हमारा सेंटर खुल रहा था उसमें। पहला गोल देख लो, आप दूसरा गोल देख लो, every time it was Lindelof who was getting dragged। तो डिसिप्लिन दो जगह पे करना है। दूसरा बात हरमन भाई, कि अगर हम टेन हैग का प्रॉपर सेटअप बात करें, तो आई डोंट थिंक टेन हैग अपना सेटअप लेने वाला है। आई थिंक राल्फ एक सेटअप क्रिएट कर देगा फॉर टेन हैग, और टेन हैग उस सेटअप में आके अपना काम करके जाएगा। अगर वो अपना प्रॉपर सेटअप क्रिएट करना, तो यू विल गेट पॉच अपना पूरा बैकग्राउंड टीम लेकर आता है, वो अपना सेटअप क्रिएट करता है। एरिक टेन हैग इज अ काइंड ऑफ मैनेजर जो कि डिपेंडेंट रहता है ऑन
the board and the different structure that the club has to give him the support. By सादिक the भाई way, आप एक और Basically, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है. basically, Just a second, Mudit bhai. There is also another breaking news coming in that UEFA has opened a disciplinary proceedings against PSG president and sporting director for their behaviors after the game versus Real Madrid last night. बैन कर दो कुछ 5 साल होगा? के लिए, बैन कर दो 5 कुछ साल भी के नहीं लिए, होगा, चल जाएगा। कुछ अब नहीं कुछ होगा, भी उनको नहीं होगा, पता है फाइन, कुछ कुछ नहीं होगा, फाइन फाइन शाइन कटेगी। होगा, वो अपनी बैक पॉकेट से निकाल के पे कर देगा. Unless Real Madrid gets really pissed off and goes for say criminal proceedings against him because he literally threatened to kill someone. इक्विपमेंट तोड़ दिया था नहीं, he said I will kill रेफरी you. का. He threatened to kill someone, ना मतलब verbally, and that has been recorded. You तो never वो know. अलग You चीज never है. know. एक और न्यूज आई थी, अगेन आई थिंक इट वाज जोनाथन स्ट्रेगर, that we are monitoring Lyon player Dembele. What do you guys think? कौन सा डेम्बेले? Lyon वाला Musa. मूसा. मूसा डेम्बेले. It's a customary every summer transfer rumor. छोड़ दो. 25 बिलियन. ना ये डेम्बेले चाहिए ना वो फुद्दू डेम्बेले चाहिए, दोनों नहीं चाहिए. Hesto giving 36-year-old Modric is better than all our midfield combined. भाई क्या, just not McFred. सबको combine करके करो ना तो भी 36-year-old Modric is better. तो वही. वो एक वो बात नहीं कर सकते. भाई मसला पता है क्या, हम लोग जब गोट्स की बात करते हैं ना, we only talk about the forwards. We never talk about the midfield, never talk about defenders. Why can't we say that Peter Schmeichel is the GOAT? He He is the won, GOAT. कोई नहीं. and to people who come and say that he only won with United, no. 1992, Denmark, a team that did not qualify, came in as a wild card into the Euro Championships. He was the captain of that team, led that team, and mind you, the Ballon d'Or winner of that year, Michael Laudrup, was not part of that team because he had a tiff with his coach. So he won the whole Euro Championship going undefeated without the Ballon d'Or winner that was part of his team. I think 92 and 93 Michael Laudrup was one of the Ballon d'Or contenders in that 92 to 96 के time. So why not we can say that Peter Schmeichel's the GOAT? मुझे तो बहुत है, हमारे हिस्ट्री में तो बहुत है, बट बात ये होता है ना कि आप फुटबॉलिंग में भी उठा के देख लो, सबसे ज्यादा पैसे आपको दिए जाते हैं एज अ फॉरवर्ड, सबसे ज्यादा ट्रांसफर फी होती है फॉरवर्ड की. तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है या एक माइंडसेट है इन फुटबॉलिंग, और लोगों का ये बोलना है कि इट इज इजी टू डिफेंड देन टू क्रिएट, यू नो. ये पिछले 10 साल का है. हाँ, ये पिछले 10 साल का ट्रेंड है. पीछे 10 साल का है. और ये अगर दिक्कत ये ना कि वो ये चला गया है, बुरिनो टाइप मैनेजर्स या कॉन्टे टाइप मैनेजर्स, दे आर गेटिंग आउट ऑफ फैशन. तो लोगों को डिफेंस करने का इंपॉर्टेंस जा रहा है ध्यान से. वो I don't think so. डिफेंस का फॉर्म चेंज हो रहा है. लिवरपूल अगर आप मेरे से that will पूछो, be better way to put अगर आप it. मेरे से पूछो, लिवरपूल टू मी इज अ डिफेंस फर्स्ट टीम. What is Liverpool defined by? Pressing and counter pressing. Yeah. They are defensive actions. मान सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री. हम लिवरपूल को एज एन अटैकिंग टीम कहते हैं, बट टू मी लिवरपूल इज अ डिफेंस फर्स्ट टीम, क्योंकि प्रेसिंग एंड काउंटर प्रेसिंग इज द फर्स्ट एक्शन. सिटी का भी वैसे ही चलता है, सिटी दूसरी तरह से डिपेंड करती है, बट दे आर आल्सो डिफेंसिंग. सिटी नहीं, सिटी ठीक है, सिटी आप एक अटैक ओरिएंटेड कह सकते हो बिकॉज़ दे कीप द बॉल एंड देयर एक्शंस आर मोस्टली विद द बॉल, सो दे आर प्रोग्रेसिव अटैकिंग एक्शंस. बट देयर डिफेंसिव लाइंस आर डिफरेंट, मतलब डिफेंसिव एक्शंस डिफरेंट तरीके से होते हैं. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डिफाइन करने जाओ तो आई वुड, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि लिवरपूल की डिफाइनिंग ट्रेट क्या है, आई वुड से इट्स द डिफेंस. देयर डिफेंस जनरेट्स all that many attacking opportunities, जिससे वो इतने सारे गोल मारते हैं. So guys, close to 35 people are watching us. Please give us the like. We are at 40. Let's make it 50 tonight. And if you haven't subscribed, please subscribe because we have a lot of plans in place. We want to bring in United players here as well. तो उसके लिए हम कितने टाइम में मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, but we are trying for that. So जितना आप हमें हेल्प करोगे, हम
उतना जल्दी कंटेंट ला पाएंगे आपके लिए. Let Indian audience, also have that benefits that, Westerners get. Why not? Why not? We can do it. We have wonderful people here, wonderful YouTubers here. Apart from that, we are joined by Pratyush, Mudit, and Sadiq Bhai today. We are really enjoying the show. And no, end नहीं कर रहे शुभम, we are not ending it. ठीक है. अभी थोड़ी देर और बात करेंगे हम. So now the thing I want to talk about is that should United players go for Chelsea players if there is an option available? Should United go for? United players go for Chelsea players? अपने को चले जाएंगे चेल्सी मौका मिला तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. यार इट डिपेंड्स कि आपके पास उस प्लेयर की नीड है कि नहीं, वरना हम फिर वही भर लेंगे जैसे हमने पहले भर लिए थे उठा के प्लेयर्स. नो रिएक्शनरी नहीं होना. देखो हाँ यस प्रत्युष भाई सॉरी. नहीं मैं ये बोल रहा था हर प्लेयर की हम नहीं जा सकते, बट लाइक कांटे इज अवेलेबल. इफ कांटे बिकम्स अवेलेबल वी कैन गो फॉर इट. और रीड जेम्स बिकम अवेलेबल वी कैन गो फॉर इट. उस टाइप ऑफ प्लेयर का जो हमको नीड है. देखो ये प्लेयर्स अभी नहीं होंगे बिकॉज ऑल ऑफ दीज जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अदर देन द डिफेंसिव लाइन इज ऑल साइंड फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 to 3 सीजंस. Absolutely. तब तक कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. एंड से गॉड फॉरबिड, आई एम not hoping for that, if something bad goes to Chelsea can't keep these players, do you think a Real Madrid, a rejuvenated Barcelona, a PSG and a Newcastle with bags of cash, especially most of these players are nearing the 30 year of age पे आ रहे हैं, this would be the last big contract. किसी ने ऊपर बोला था do you see Newcastle finishing fourth? I don't see Newcastle finishing fourth, but they will be in the top 10 of the table. Probably top 6 or top 7. Top 6 top 7 could be. They could give a fight for that easily. The thing what they're doing ना, अगर आप देखो Newcastle is not going the PSG route. Yeah. वो स्मार्टली बिल्ड कर रहे हैं. वो आहिस्ते आहिस्ते कम्युनिटी में अभी कह रहे हैं कि हम पहले आपका ट्रेनिंग एकेडमी बनाएंगे क्योंकि न्यू उसके ऊपर काम चलेगा इस समर में. They're saying they're going to break ground on that this summer. That's the way to do it. And by next season they're starting to build. अगर आप न्यूकासल के यूट्यूबर्स सुनो ना, मैं वो जैसे नहीं आप एक कम्युनिटी में एक माइंड बनाते हो लोगों का कि we might have to let go of St. James's Park, we might have to let go of St. James's Park, तो वो एक बड़ा स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते. They're progressing in a very good manner and 3-4 साल में they will be a very very dangerous club to contend with. और सादिक भाई I see a comment. एक मिनट प्रत्युष. So somebody is asking a prediction about Manchester United versus Atletico. Just take second. उससे पहले Arman is saying Meath and Goldbridge go hand in hand. Sir, माफ करो. I don't flip flop from my opinions. ठीक है. वो कल के मैच से पहले भी सेम था, अभी भी सेम है. I don't change my opinions. Not easily. गोल्ड ब्रिज को नहीं लाना है भाई शो पे. मैं यूनाइटेड प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तुम गोल्ड ब्रिज की बात कर रहे हो यार. मत करो ऐसा. So our prediction for United versus Atletico, I think it's too early, but what does your gut tell you? Rafael Varane is fit and he'll start. That's a big also have players returning. Playing at Old Trafford, I want to see a reaction first against Spurs. तो फिर मैं बता पाऊंगा कि टॉटनहैम के इस एथलेटिको के अगेंस्ट हम कैसा खेल पाएंगे. मुझे पहले सिटी का रिएक्शन देखता है, सिटी के लॉस का रिएक्शन आता है कि नहीं अगेंस्ट स्पर्स. फिर तो पता तो चले कि इज दिस टीम does these players want to fight for United or their career. You know, I am over this shit of reacting after losing. ये No, लोग it's okay. बहुत I know. But हमारे लिए अभी रियलिटी वही है. मैं जनरली बोल रहा हूँ. नहीं बट हमारे लिए रियलिटी वही है. हमारी रियलिटी वही है कि हम हारे. We need to see a reaction. Reaction is important, but can't do anything ना. मैं अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर दूं कि कैसे खेलेंगे वो. मेरा पता क्या था, मैं कल रात को बैठ के यही सोच रहा था कि क्या हो सकता है. मैं बोला अगर जीतेंगे, फिर मैं बोला जीतेंगे तो हमें नेक्स्ट राउंड में मिलेगा कौन. मैं बोला बायर्न मिली. बायर्न नहीं मैं ना गिन रहा था. बायर्न मिली तो बेइज्जती होगी. सिटी लिवरपूल तो पता ही है बेइज्जती होगी. 2 लेग्स में वो भी.
पीएसजी अगर निकल गई है। हमें अगर ये मैड्रिड मिल गई तो क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच हमारा भूत बना देंगे। उसके बाद में आईएक्स मिल गई तो आईएक्स ने तो इधर घुमा घुमा के पेल देना है। मैं कहता हूँ बेंफिका भी मिल गई तो डार्विन न्यूनेज वर्सेस मैग्वायर। बट क्या होगा? बेंफिका को हम थोड़ा सा कर सकते, खेल सकते हैं उनके लिए। बेंफिका की मिडफील्ड देखी है? अरे बट वो मेंटालिटी थोड़ा सा डिफरेंट मेंटालिटी, क्या बात कर रहा हूँ मैं बेंफिका ने यूनाइटेड के बारसा को प्लेयर्स की 3-0 मेंटालिटी मार की दिया था। बात। बेंफिका बट ने यार बारसा को ठीक 3-0 है, मार दिया था। बट आई थिंक वी कैन प्ले अगेंस्ट, मतलब मैच हम जीत जाएंगे वो गारंटी फिर नहीं दे मैंने रहा हूँ, देखा, बट वी इट विल बी अ गुड फिर मैच। मैंने सोचा चलो व्हाट आर द वीकेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। मैंने कहा अगर यूवेंटस या विलारियल में से कोई मिल गया तो विलारियल तो वैसे ही हमें उसने ग्रुप में तंग किया था, और यूवेंटस मिल गया तो व्लाहोविच वर्सेस मैग्वायर, दैट वुड बी अनदर साइड टू बिहोल्ड। पहले बात करते हैं जो मैच बचा तो है अपना चैंपियंस लीग में। फाइनली आई कंक्लूडेड, इज्जत से ड्रॉ करो, पेनल्टीज पे हार जाओ, निकल जाओ। अब क्या बोल रहा है यार? I think it will be a narrow win for United. Lucky win. ठीक है, XG gods for once will favor Manchester United कि इस बार कम XG पे हम जीत जाएंगे. That's my hope. That's my hope. ठीक है, अगर if we draw or lose, surprise I don't think United fan base में किसी को होगा. But as an eternal optimist, when it comes to my club, I think that we'll have a narrow win. I want to have a narrow win. भाई मेरा ठीक है, बाद में जो होता है होता है. भाई मेरा ओपिनियन भी ऑप्टिमिस्टिक ही था इन टर्म्स ऑफ आउटकम। यार या तो क्वार्टर फाइनल में नंगे हो जाओ, या कम से कम कपड़े बचा के सेकंड राउंड में निकल जाओ। मीत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो गाइज आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ठीक एक है, सेकंड। जो कल आप इतना प्रेज कर रहे हो मुदित भाई को, ठीक है, कीप दैट गोइंग कि उनका प्रेडिक्शन सही हुआ, कूडोज टू दैट। ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मगवायर एक गोल मारेगा वर्ल्ड कप फाइनल में। आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस, एंड गाइस वी आर 2 लाइक्स अवे, प्लीज 50 कर दो, वी आर नॉट फार अवे, जस्ट 2 लाइक्स, और सब्सक्राइब करो इफ यू हैवंट, follow us on Twitter and Instagram, and reach out to us if you want to be here. Do join us, और हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है let us know so that we can improve upon it. काफी सारी चीजें पाइपलाइन में है, as I keep on saying. Let's get back to the football discussion. Oh, by the way, What? रिवाज देख रहा है क्या? रिवाज was the winner for the jersey. उसको हमने मेल किया है, उसका एड्रेस मंगाने के लिए रिप्लाई नहीं किया है बंदे ने। भाई चाहिए जर्सी, वरना दूसरे यहाँ पर विनर्स काफी बैठे हैं लेने को। प्लीज इफ कोई रिवाज का दोस्त भी है तो लेट हिम नो। अबीर बोल रहा है प्रेडिक्शन दे दो मुदित भाई। और वॉच अलोंग का बात में उत्कर्ष, एज वी ग्रो वी विल डू इट। अभी फिलहाल वी आर लिमिटिंग देयर। So let's do this thing. If you had to pick one player from the Chelsea squad, whom you'll go for? Hypothetically. Kante, absolutely Kante. We need that kind of a midfielder. आई वो डोंट हमारा थिंक वी कैन मिडफील्ड को गेट ना, हिम। नो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं हाइपोथेटिकली मैं आंसर समझ दे रहा रहा हूँ, हाँ, बट हूँ। ही उसको बोलेंगे ना भाई तू 80% वेज कट ले ले और चेल्सी के लिए खेल, वो फिर भी खेल लेगा, ऐसा इंसान है वो। वो नॉट है, किडिंग। बट मेरे साथ बात ये है, इफ वी गेट हिम ना, हमारा मिडफील्ड सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज ही कैन डू व्हाट वी नीड एट ओवर देयर। वो पूरा मॉप अप कर लेगा बैक पीछे खड़ा होके, एंड देन वी कैन लेट वैंडीबिक, एंड इफ वैंडीबिक कम्स बैक एंड ब्रूनो या इवन फ्रेड कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव विथ कांटे ओवर देयर। तो एक वो स्ट्रेस जो है ना, जो मिडफील्ड में जो स्ट्रेस रहता है वो रिलीज हो जाएगा। इट विल बी इजियर टू कंट्रोल द गेम। उस और दूसरा बात ये है ना कि ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है। वो बहुत काम और बहुत थॉटफुल पर्सन है। ही डजंट गो आउट कि मैंने ये किया है या मैं वो करता हूँ। द थिंग इज ना कि वो बहुत सॉर्टेड ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। Yeah, I would agree with Amar here. Reece James for me. सादिक भाई। I'm a bit conflicted between Kante and Jorginho, because Jorginho is the kind of player we need. We need that shield, that screener who turns into a third centre back in transition, and plus his पता है जॉर्जिनियो ना पेस को थोड़ी सी
कम करता है, थोड़ा कंपोजर लाता है गेम में, और उसको आप फ्रेड के साथ अच्छी तरीके से खिला सकते हो। आज यूरोपा में किसका मैच है? आई एम नॉट श्योर। बार्सिलोना गैलाटासराय। बारसा गैलाटासराय। बार्सिलोना का मैच अच्छा, इसलिए जय इज अ बार्सिलोना फैन, सो इज आस्किंग व्हाट अबाउट यूरोपा लीग मैचेस। किसके सामने है? नापोली है ना? गैलाटासराय बार्सिलोना। अच्छा, नेपोली मेरा तो भी हो बड़ा गया, यूनिक जीत गए। कॉम्बिनेशन है। अच्छा। आई एम अ यूनाइटेड फैन एंड अ बारसा सपोर्टर। वाह। So there's Depay, Traore, Torres, Pedri, De Jong, Nico, Jordi Alba, Garcia, आज Araujo, बुस्केट्स रेस्ट कर रहा है ना? and Ter Stegen। हाँ जी। आज बुस्केट्स रेस्ट कर रहा है ना? बुस्केट्स को नहीं खिलाया ना? हाँ नहीं खेला। फर्स्ट लेग है ना कि सेकंड है? नहीं, फर्स्ट लेग एंड गैलाटासराय ऑनेस्टली अगर बारसा हारी तो दे विल लूज बाय प्लेइंग बैड, क्योंकि गैलाटासराय इज व्हाट 13th और 12th इन द टेबल। Nothing. वो They खत्म should हो be गया, वो fine. क्लब खत्म हो गया है। They have a वेस्ट हैम camp वर्सेस like सेविया भी है। they Nice. still have. वो you इंटरेस्टिंग guys- होगा, वेस्ट हैम वर्सेस you सेविया guys might इंटरेस्टिंग होगा। गुड मैच, remember वेरी गुड मैच। they मार्शल have है क्या? Babel. बारसा बारसा तो जीत जाएगी, मतलब बारसा आई थिंक बारसा बारसा के लिए it's a walkover. 4 और 5 नहीं, बारसा को They're मैं going एक्सपेक्ट कर to. रहा हूँ 4-5 नहीं जीतने के लिए, जब Bhai, उन्होंने the नेपोली को players, दौड़ के the players, वापस the बात players करेंगे। at Galatasaray. You remember these names? कहीं ना कहीं सुना ही होगा। फेगुली, रायन बैबल है, रायन बैबल है, वान एनोल्ट है, आर्दा तुरान भी है, रतुरान भी है, बट वो खेलने वो का। सुफियान फिगुली है। फेगुली ठीक है, yes. बट गैलाटासाराय को मैंने 2-3 मैचेस देखे थे इन द ग्रुप स्टेजेस, तो दे आर नॉट दैट नहीं, लेवल, they are not. उस लेवल पे है ही Serie and West Ham is a draw so far. कृष्णा सेज हर जर्जिनियो गलती में गोल मिलता था यूनाइटेड को, उसी को ले रहा। नहीं भाई, सो आई वाज लेफ्ट विद माय प्रेफरेंस। आई वुड गो फॉर कांटे। आई जस्ट लव दैट प्लेयर। आई थिंक फॉर मी ही इज द बेस्ट मिडफील्डर, इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बहुत 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 टॉप क्लास है वो। बहुत मजा आता है देखने को। द ओनली प्लेयर आई रियली रियली एनवी व्हेन आई वॉच राइवल क्लब्स इज दैट प्लेयर। एंड कांटे भाई, he is a different gravy in real। वो वाली ग्रेवी नहीं जो पॉगबा की बनाई थी, ठीक है? शेजवान चटनी और खजूर ये चटनी लेकिन मिक्स। कांटे भी सीडीएम नहीं है। कांटे को भी एक हाँ। सीडीएम चाहिए उसके साथ खेलने के लिए। हाँ। नहीं, Will be- वो सीडीएम था, बट आई थिंक सारी हैज evolved him into वो more of a center Now he's midfield become number that 8। number 8। वो इवन फ्रेंच हाँ। टीम में भी सीडीएम नहीं खेलता है। हम्म, वो दो फ्रेंच टीम का तो ये टैलेंट ही इतना है उस टीम में कि वो दो पिवट खेलते हैं, पॉगबा और कांटे, वो दोनों नंबर 8 खेलते हैं। वो एक अलग ही लेवल का उनका पता नहीं क्या फॉर्मेशन चल रही होती है, बिकॉज उधर एक बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। डिडियर डेशॉम्स इज अ एक्सीलेंट मैनेजर। एक क्वेश्चन है, who's the Real Madrid player you like at your club? अरे भाई, अभी का मॉडरिच Casemiro. और कैसेमीरो, एनी डे Casemiro, दैट्स व्हाट वी नीड ना। Casemiro is a good shout। We need Right out, Casemiro. bhai. We need a player like Casemiro. That's the thing. No, I will go for Benzema. We need a striker. Strong We need a shout। striker badly. फिर अरे से भी अच्छा हुआ ये ignore- कल परसों डिबेट कर रहे होते ना, तो सब बोलते कि यार 1-2 साल ही बचा है, बूढ़ा हो गया है, ये है वो है, ठीक है? जैसे लेवेंडोस्की को ट्रेन करते हैं ना। नहीं, हाँ, लेवेंडोस्की Top को भी class मैं वही बोल strikers। रहा हूँ। मैं बेंजेमा को भी वो उसी रूप में देख रहा हूँ, बट एक प्लेयर मुझे लेना है मैड्रिड से, और मुझे एक अपना स्पेस वो फिल करना है इमीडिएटली, तो उसके कारण मैंने बेंजेमा को दिया है, क्योंकि हम सीडीएम के लिए ऐसे भी जाने वाली ही हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इस वक्त जो अपनी स्ट्राइक फोर्स है ना, अगर आप एक सीडीएम ले आओ ना तो वो स्ट्राइक फोर्स भी चलना शुरू हो जाएगी। Absolutely. हाँ। अभी जो हमारा स्ट्राइक डिफेंस फोर्स है वो इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट डे स्ट्राइक फोर्स होगी ही नहीं। खत्म हो वो गई भी वो है। स्ट्राइक फोर्स। हाँ वो तो है। So I want to talk about Chelsea here. So 3-4-3 में स्टार्ट कर रहे हैं as per the notifications. Saul is starting on left wing back. Saul is playing left wing back, Aspi is playing right wing back, Chalobah is there, Christensen, भाई। Silva। Christensen and अमर- Silva। ये अभी क्रिस्टेंसन को दबा के यूज करेंगे, रगड़ेंगे अमर उसको। ने बोला है पॉगबा ग्रेवी नहीं खिचड़ी है। यार खिचड़ी यार कितना सही फूड होता है, पता है? जब यार तुम बड़ा बीमार अच्छा होते लगता हो, है। ठीक है, पर वो सिर्फ बीमार होता है। हाँ, so lineup. चेल्सी का मैच किसके अगेंस्ट है आज? नॉरिच। नॉरिच। नॉरिच चेल्सी फेल की देगी भी- यार। चेल्सी नॉरिच should win it. 5-4-1 स्टार्ट कर रही है।
यूजुअली बैक फोर स्टार्ट करती है, विलियम्स और अगेन फिर तो प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग फिर बैक। फिर और बुरी पिल जाएगी। आप सोचे एक टीम के लिए अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हो, वो भी चेल्सी ऐसी टीम के लिए जो कि 4 गोल मार के आई है, और पेल देंगे। कृष्णा भाई, लेट मी टेल यू समथिंग, पहले 50 मिनट के लिए ना मैड्रिड का प्रेसिंग बिल्कुल अच्छा नहीं था। दे वर गेटिंग किल्ड, जितना प्ले आउट कर रहे थे ना पीएसजी इजीली, इट वाज वो फीलिंग आ रहा था इट्स मैन वर्सेस बॉयज इतना। शुरू के 10 मिनट, शुरू के 15 मिनट मैड्रिड ने दबा के प्रेस किया था, द फर्स्ट हाफ, हाँ बिगिनिंग Yeah. 15 मिनट्स, फिर उसके बाद दे एकदम वो पिnned them down। हम्म, उसके बाद क्या हुआ, पीएसजी सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट कि ये सिर्फ लेफ्ट साइड से ही आ रहे हैं आगे। Mm. Then to counter their overload, they overcompensated defensively on the left wing, क्योंकि उनको पता था Yeah. राइट विंग पे असेंसियो हग रहा है और बाकी बाकी पूरा राइट विंग डेड पड़ा है। सो फुटबॉल एंथुसियास्ट हमने ऑलरेडी बात कर लिया इस बारे में, प्लीज थोड़ा पीछे करके देख लो अबाउट आवर टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट यूनाइटेड मैनेजर, स्पेशली टॉमस। लूक और फ्रैंकी, यार जस्ट फॉर द एज मे बी फ्रैंकी डियोंग, बिकॉज वो एक लंबा करियर देगा। अरे बाय फ्रैंकी 52 डियोंग एनी लाइक्स। डे यार, फ्रैंकी डियोंग Thank का you रोल so देखा, much. he Thank you so plays। much, Shubham and everyone. Thank you so much. Keep being here. If not subscribed, please subscribe. Kamavinga is also an excellent signing that we couldn't do it in Madrid. We went to Madrid, sadly. But बहुत बहुत सही potential है. अच्छा Love the skill. सादिक भाई एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, इन द मिडफील्ड जो हमको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, शुड वी गो फॉर डिजोंग और वी शुड वी गो फॉर बेलिंगम? neither। Neither, because we can't afford them. No, We it's not can't. about the affordability also, even if you can afford, Mm. they won't sort your midfield, क्योंकि Mm. फ्रैंकी नो डियोंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव मिडफील्ड के बाद सेकंड मिडफील्ड अगर आप खरीद रहे तो। आप सीडीएम डाल दो, मैक्टोमिने और फ्रेड भी चल जाएंगे। फ्रेड ब्राजील में बहुत लेवल का अच्छा खेलता है। आप कभी लेकिन ब्राजील सादिक का भाई मैच तो आपको देखो ना, रिप्लेस भी तो करना है, पॉल पोग्बा जाएगा तो यू नीड आपको दैट, जरूरत ही नहीं है, आप सीडीएम डालो, फ्रेड पॉल पोग्बा का भी काम पूरा कर देगा। आप कभी ब्राजील का मैच, आई एम अ यार ब्राजील फैन, मैं सादिक भाई ब्राजील के मैच मैं भी ब्राजील फैन हूं सादिक, मैं भी we've ब्राजील not फैन लेवल हूं है उसका अलग। इंटरनेशनल पे। we've not unleashed that guy yet. इसका नहीं भाई potential जब पे वो खिलाया ही कैसेमीरो नहीं और यार। फबिन्हो के लेकिन साथ खेलता है ना, हाँ, लेकिन सादिक भाई हमको ये ध्यान रखना है कि वी माइट लेट मैटिच गो, तो हम अगर एक डीएम लाते हैं तो हमारे पास एक ही डीएम रहेगा। इफ ही गेट्स इंजर्ड देन नहीं फिर तो आप फ्रैंकी डियोंग देखो, आप फ्रैंकी डियोंग अगर ला रहे हो ना, तो आप उसको ऐसे नहीं ला रहे हो कि हमारा डीएम इंजर्ड हो जाए। फिर आप फ्रैंकी डियोंग को ला रहे हो एज अ प्राइमरी नंबर 8, उसकी आपको हाँ, जरूरत नहीं है। बट ही कैन शिफ्ट टू डीएम आल्सो ना, वो रेगुलर खेलेगा विद ब्रूनो, उसको बट ही कैन शिफ्ट टू उसको डीएम। आप अगर सिंगल पिवट खिला दोगे ना, तो आप बहुत रोगे। स्टार्ट में गलती की थी बार्सिलोना ने। फ्रैंकी Versus डियोंग का Kimmich अभी जो वो रोल है है। ना, फ्रैंकी डियोंग का अभी जो रोल है ना, वो बारसा का जो हाइब्रिड 3-4-3 जो ट्रांजिशन में बन जाते हैं, ही प्लेज एन ऑक्सिलरी सेंटर बैक, एंड देन वो सेंटर बैक से जैसे जब जॉर्डी एल्बा कवर करने मूव करता है, वो आगे निकल जाता है। Yeah. वो बारसा के मोल्ड का प्लेयर है, वो पोजिशनल प्ले, वो ना हमारे सिस्टम में वैसे ही परेशान हो जाएगा कि हमारे यहाँ किसी प्लेयर को पोजीशन का एबीसीडी भी नहीं पता है। नहीं तो ये चीज एरिक टेन हैग विल कम इन एंड पुट इट इनटू देयर ब्रेन्स ना, वो सिखाएगा उनको, एरिक टेन हैग इसीलिए तो आएगा। अमर से अरे वो किमिच सीखने के लिए कितने में आ ब्रेन्स सकता चाहिए है? ना, आपने बोला ना टू पुट इट इन द ब्रेन्स, दे डोंट हैव फुटबॉलिंग ब्रेन्स। किमिच कितने में आ सकता है भाई? किमिच नहीं आएगा, he won't come to Manchester United, not right now, unless some magic happens, कोई भी किमिच प्राइस को में ना ले हम आओ। किमिच करते रहेंगे, इसको हम बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर की तरह, जैसे करियर खत्म हो जाएगा ना, तब लेके आएंगे। And get Sadiq bhai, we should not offer further contract and get Rafinha. Dembele performs twice a year. कौन बोल रहा है भाई डेम्बेले के लिए जा रहे हैं हम? मत सुनो रूमर्स की, मत सुनो। डेम्बेले उसका हम age ना है। ही रफीना के लिए जाएंगे, हम ना ही डम्बेले के लिए जाएंगे, हम राइट विंग पे कोई नहीं खरीदेंगे। We are going रफीना to get makes too much sense. हाँ, हाँ, रफीना but makes too I much think sense. अमाद को लाके उसको इंटीग्रेट करवाएंगे। आपके पास एंथनी इलांगा है जो राइट विंग पे अच्छा अपने आप को सेट कर रहा है, और हम कहते हैं ना एंथनी इलांगा लेफ्ट विंगर है, वो फर्स्ट टीम में आके लेफ्ट विंगर था, वो यूथ स्क्वाड में राइट विंग ही खेलता था। He can play as a striker as well. हाँ, तो आपके पास
सैंचो है, ये आपके पास एंथनी इलांगा है, होपफुली रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड कम्स आउट ऑफ हिज स्लम्प, कम्स आउट ऑफ इट, या आपके और पास अमाद रैशफोर्ड है, आपका वर्किंग में है, फकुंडो है, प्लेयर्स है हमारे पास, प्लेयर्स है हमारे पास. वी डोंट नीड विंगर, वी माइट नीड अ स्ट्राइकर, वी डेफिनेटली नीड अ Oh, डिफेंसिव मिडफील्डर. Sadiq bhai, Pratik is asking you about the Barcelona Rafinha. I guess I'm not sure what no about Leeds Rafinha in place of Dembele at Barcelona, not at United. ना यूरो इस वक्त वो जरूरत नहीं है बारसा को. डेम्बेले, आई मीन यू हैव आब्दे, यू हैव क्या कहते हैं, इलियास ऑन द बेंच ऑलरेडी, दे आर डेवलपिंग. उसके बाद डेम्बेले जैसा प्लेयर ना, यू गेट रफीनिया, ही विल बी एक्सपेंसिव. यू नीड समवन विद दैट. देखो डेम्बेले की यूटिलिटी इज इज बाइपीडल नेचर, Hmm. रफीनिया इज नॉट बाइपीडल. Hmm. What do you guys think about Tony and Rashi situation? Tony जिंदगी में नहीं चाहिए मेरे को. टोनी इतना अच्छा प्लेयर है ना, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड शुड स्टे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. प्लूटो में रखो उसको, ठीक है. कीप हिम अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना दूर हो सके. कीप हिम फार. अबाउट डॉनी डिपेंड्स ऑन द मैनेजर. डॉनी फॉर मी, एरिक टेन हैग आएगा तो विल गेट अ शॉट. डॉनी जैसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, डॉनी हो गया या फ्रंट की डिजोंग, दे आर सिस्टम प्लेयर्स. वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही बने हैं. इफ यू आर implementing that system, they are going to be very very good. If you are not No, implementing but that system, they are not. Donny is at Everton कोई follow कर रहा है अच्छी तरह? What अच्छा doesn't नहीं बहुत खेल he अच्छा रहा, do? नहीं खेल रहा है, अच्छा नहीं बहुत खेल अच्छा रहा. नहीं खेल नहीं खेल रहा है. पहला मैच, वो पहले 2 मैच अच्छे थे, उसके बाद लास्ट 2-3 मैचेस में ही इज बीन एवरेज. एवरेज एट द मैक्स. तो And असल what में वो मसला position ये है are ना, they playing in? एवर्टन की भी जो बाकी मिडफील्ड है ना, एलन जो है वो एक ही सीडीएम है उनके पास, एंथनी गॉर्डन है, तो डॉनी को वही मसला उधर भी हो रहा है जो यहाँ अपने पास हो रहा था उसको. और ऋषि But भाई, any change you've seen in him, Sadiq bhai? या ही इज ओनली गेट, द ओनली चेंज इज ही इज गेटिंग प्लेइंग टाइम नाउ, ठीक है. बस. uh, दैट्स कुछ इट. कुछ कुछ बचा कुछ रशफोर्ड. कुछ चीजें देख रहा हूँ मैं, बट देयर थिंग्स ना, जैसे वो जो यूनाइटेड में ट्राई करता था इन टाइट स्पेसेस में, वो वन टच, वो भी ट्राई नहीं कर रहा है वहां पे. वो भी उसका नहीं वहां आ पे रहा है, वो उसको, भी ट्राई नहीं कर रहा है. वहां पे प्रॉब्लम ये है कि एवर्टन द होल टीम इज प्लेइंग सो शिट राइट नाउ हाँ, ये भी बात है, कि यही बात है. he can't express himself only. व्हाट अबाउट रैशफोर्ड? भाई रैशफोर्ड पे तो इतना गुस्सा है मेरे को, ठीक है. एज मच एज आई लव रैशफोर्ड, बट ही विल नॉट बी सोल्ड, ठीक है. बट उसको जाना है तो भाई जाओ. आई डोंट केयर. इफ यू डोंट वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट केयर हु यू आर. यू वांट टू गो, यू कैन गो. आई नो इतना सिंपल नहीं होता है, बट एज अ फैन आई डोंट वांट टू सी दैट कि भाई हम और बैक करे प्लेयर्स को, जैसे कवानी वगैरह को किया था लास्ट टाइम. एंड दिस टाइम वी आर सीइंग व्हाट हैपेंड. सो जिसको नहीं रहना है, दे कैन गो, दे कैन लेट इट गो. रैशफोर्ड रैशफोर्ड ठीक है, हाँ. अगर वो अपना नौटंकी शुरू करता है तो लेट हिम गो. बट अगर सब कुछ शांत रहता है तो आई वांट टू गिव हिम अनदर सीजन. लाइक एक सीजन उसका खराब हुआ है, अग्रीड. वो 2 सीजन से अच्छा परफॉर्म कर रहा था. सो लेट्स गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट. एक सीजन और देखना है. इफ ही कम्स बैक फ्रॉम, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. अगर वो अपना रिदम में आ जाता है तो बहुत अच्छा प्लेयर है वो. रिदम पे है ना, पर रिदम इज अ गुड डांसर. ही कांट बेंच एंथनी लांगा राइट नाउ. राइट नाउ नॉट पॉसिबल, बट फिर मैं हर बार ये बोलता हूँ कि यू नीड टू मैनेज द वर्कलोड ऑफ यंग प्लेयर्स दैट आर कमिंग थ्रू. जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था जब हम लोग अंडर एलेक्स फर्ग्यूसन थे ना, जो यंग प्लेयर्स आते थे उनका वर्कलोड बहुत अच्छे से मैनेज होता था. उनको हर समय नहीं खिलाया जाता था, उनको सही तरह से यूटिलाइज किया जाता था. हमारे साथ इशू वही हो रहा है ना, दैट वी आर पुटिंग देम इन डायरेक्टली, और एक्सपेक्टेशन लेवल डिफरेंट हो जाता है. और फिर जब वो ड्रॉप करते हैं तो दे आर गेटिंग अब्यूज्ड एंड ऑल दैट इज द सोशल मीडिया एंड ऑल. बहुत अब्यूज मिलता है. एज अ यंग प्लेयर यू नीड दैट स्पेस टू ग्रो. अगर आपको वो स्पेस नहीं मिलता ना ग्रो करने का, तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो. So I'll take the last few comments, then we'll wrap it up. Chelsea को मिल दे क्वार्टर फाइनल्स में, यूनाइटेड को मिल जाए भाई. काफी hypothetical. I don't see Chelsea losing this tie. Overall, I think they'll go through. कॉर्नर कैलर क्या चेल्सी में रहेगा? थॉट्स, जाएगा तो कहाँ? आई डोंट नो अबाउट दिस सिचुएशन अ लॉट. नहीं, If Gallagher anyone is, will finish his loan and come back.
They have another लोनीज player, right? नहीं जा रहे. लोनीज who are under contract are going nowhere. Players under contract are going nowhere. Hmm. There's also the striker, right? जो चेल्सी का ही लोनी है. Broha, Who bro? हाँ हाँ. हाँ he's at Southampton West का. Ham ना बर्नले या वेस्ट हैम का Southampton. नहीं Southampton. साउथहैम्पटन got it. Southampton. अरे उसी ने तो वो घुमाया था मैगवायर को. मैगवायर को समझ में नहीं आया कुछ भी. And the sky is blue, water is wet. ये Maguire. समझ नहीं आता. अपन हर किसी का बोलते हैं उसी ने घुमाया था मैगवायर को. कितनों ने घुमाया. जो भी प्रीमियर लीग स्ट्राइकर है, हाँ यार उसी ने तो घुमाया था. कम से कम सिटी मैच में नहीं बोल सकते कि कोई स्ट्राइकर ने घुमाया था मैगवायर को, क्योंकि स्ट्राइकर नहीं खेलता है. लेकिन उसकी पूरी टीम ही घुमा गया. Anyway, guys, if you haven't subscribed, please subscribe. Thank you for giving us over 50 likes today. We really liked this interactions with you, especially आज का बहुत मजा आया. We are trying to bring in a lot of stuff here. Maybe Manchester United players as well. Hopefully, कितने time में we don't know, but we are trying. Could be 3 months, 4 months, I don't know. Could be 1 month. Who knows? Who knows? Please show your love and affection. Please share it with your friends if possible. आप जितना हमें हेल्प करोगे हम उतना इजीली पिच कर पाएंगे कि दिस इज आवर चैनल, दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी कैन ब्रिंग टू द प्लेयर्स, टू यू एज वेल. सो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द फैन ऑफ द वीक. उसके प्रोसेस में हम कैसे फिगर आउट करना लॉजिस्टिक्स, वो वी आर ट्राइंग टू डू दैट एंड वी आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. आप देखते रहेंगे न्यू थिंग्स. एंड अबाउट ट्विटर, प्लीज फॉलो आवर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. अगर नहीं तो मुदित भाई को रिपोर्ट कर दो, अच्छा कंटेंट नहीं है, वरना फॉलो कर दो. ये घटिया से पेज आप फॉलो करते हो, MUFC MPP, ठीक है. हमारा पेज भी देखो यार, काफी मेहनत करते हैं उसके पीछे. मजा आएगा. अगर नहीं आया तो कर देना रिपोर्ट. ये मुदित भाई, ही वर्क्स फॉर 90 minutes, ठीक है. जस्ट टेलिंग यू कहाँ ढूंढना है इनको. एंड प्लीज हेल्प अस यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, ताकि हम और बेटर कर पाए चीजें. And last important message, please stand up against anything you see wrong in the society. I'm not saying to fight or anything. I'm saying just stand up if you see anything wrong in the society, even if it's bullying, even if it's something, any kind of violence, abuse, anything. आप अपना पार्ट कीजिए. That will go a long way to make a healthy society. Hope you have a good night. Take care and enjoy the Premier League and Europa League matches tonight. Good night. Good night, guys. Good night.